गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलते ना अच्छा नॉलेज लेना है तो उसके लिए थोड़ा वेट तो करना ही होता है। सब्र का फल मीठा होता है और जितने भी लोग कपिल गोयल सर को जानते हैं सभी को पता है कि सर ने वेट जरूर करवाया है, लेकिन हमें नॉलेज भी उतना ही अच्छा मिलेगा। और जिस तरीके से सारे प्रोग्राम यहाँ पे मेडल चल रहे हैं, मेरा भी फर्स्ट एवर कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम है तो, लेकिन मेरे गुरु यहाँ पे है कैलाश सर, सतीश सर, तो मुझे थोड़ा सा जो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी अब नॉर्मल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ भी अगर गलती हो जाए तो प्लीज पार्डन मी सर। नॉलेज इज लाइक अ रिवर, knowledge is like a river, the deeper it flows the less noise it makes। और ऐसे ही है हमारे आज के कपिल गोयल सर, जिनने काफी छोटी सी उम्र में इतना सारा नॉलेज गैदर कर लिया है और हम सब लोगों के बीच में देते रहते हैं। तो आज हम सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि सर हमारे बीच में मौजूद है और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये सेशन 10 मिनट से लेट हुआ है, लेकिन मैं आप सबको एश्योर करता हूँ कि आप कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि सर का नॉलेज इतना ज्यादा है कि आप लोग लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन सर देते रहेंगे। तो सर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं हमारे बीच बुलाना चाहूंगा हमारे दीपक जेठवानी सर, जो सर को इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लीज दीपक सर। Thank you, C. Sanjay. Thank you, C. Sanjay. Good afternoon, respected members. In this first technical session of Team 2022, I'm raised here to introduce to you speaker for the first technical session, CA Kapil Goyal sir. Sir is law graduate from Merit University and fellow member of ICAI. He is member of the Direct Tax Representation Committee of All India Federation of Direct Tax Practitioners for interaction with CBDT and Ministry of Finance. He is designated faculty for International Taxation Certificate course conducted by ICAI. He has conducted more than 1,000 seminars at various forums and addressed more than 600 senior officers in Income Tax Department. He has represented more than 1,000 cases at appellate authorities, including ITAT and High Court. Dear members, I request you all to join your hands to welcome C. Kapil Goyal sir. Thank you. आप लोगों ने जैसा इंट्रोडक्शन में सुना, सर ने 600 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स इनको ट्रेनिंग दी है अब तक। मोर देन 1000 केसेस में सर ने अपीलेट अथॉरिटी के रिप्रेजेंट किया है, तो जोरदार तालियां हो जाए। आई एम वेलकमिंग कपिल गोयल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नाउ फोरम इज योर और ऑडियंस आपकी है। ऑडियंस और आपके बीच में मैं नहीं आऊंगा, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Am I audible, sir? Am I audible properly, sir? संजय तुम्हारा सवाल वहीं से बोल। ऑडिबल जोर के बोलेंगे सर तो आप और। Am I audible, sir? Yes. Thank you. Thank you, sir. I first of all convey my regards, sir, to everyone, all the members who are present there in this program organized by the Nagpur branch of WIRC of ICAI, sir. And I'm sorry that due to certain family constraints, health constraints, I could not join you in person. Although I received a lot of love and blessings and affections from this part of the city, I have been very close to this Nagpur branch, sir. Nagpur branch has been very affectionate towards me, sir, personally also. And I always relish the fond memories in my mind about my visits on Nagpur branch, sir. And I always remember to share a shairi from our great friend Julpesh Bhai, which always enlivens in our which always freshes every one of us, sir. And he has I believe he is also there, Julpesh Bhai, and my all the good friends are there in this seminar, sir. Although we are slightly late, but yes, and chairman of the session, my good friend
who has given a very beautiful introduction about me, sir. The topic which is given to me is the finance bill, the proposals relating to direct taxes on finance bill 2022, sir. Am I audible properly now, sir? I'm rechecking, sorry. Sir, am I audible? Sir, you are audible, but the bandwidth is low, I think. Oh, I'm sorry. Let me recheck, sir. Let me recheck, sir. Sorry. May नेटवर्क का प्रॉब्लम है लेकिन आवाज तो आपकी Is it better now? Hello. Yes, sir. Is it there, sir? Am I there now? Yes, sir. Hello. Am I there, sir? Hello. बोलिए सर, ट्राई करिए, एक बार बोल के देखिए सर. सर प्लीज स्पीक. Hello. हेलो सर am I- हेलो बराबर उधर से लड़का ना बेटा, इधर से सर आप कनेक्टेड है क्या आपके एंड पे? अब दिख रहे हैं आप दिख रहे हैं. एक्चुअली स्क्रीन हैंग हो गई थी आपकी. अच्छा एक मिनट, अभी आप सर बोलिए, आप माइक्रोफोन में बोलिए, अभी दिख रहे हैं. Hello. Hello. आपकी सर आवाज़ नहीं आ सर, आपकी आवाज़ मुझे फोन पे आ रही है, इधर नहीं आ रही है. हेलो अच्छा, आ रही है आपको. Hello. Hello. हेलो हेलो प्लीज सर यू आर ऑडिबल नाउ सर अभी आपकी आवाज़ आ रही है. Can I speak, sir? सर आपकी आवाज़ पूरी नहीं आ रही है. अभी आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर मुझे. नहीं आ रहा आकाश. नहीं आ रहा क्या? सर अभी आप एक बार बोल के देखिए. हेलो सर. अभी परफेक्ट है सर, आपकी आवाज़ परफेक्ट आ रही है. अभी परफेक्ट आ रही है सर. ठीक है. कैन आई वीडियो बंद करूं क्या सर? नहीं नहीं, आप परफेक्ट है, चलने दीजिए सर. ओके. Sir, sir, I can. Sorry, I am not able to see the name of our session chairman, sir. What is his good name, sir? I have to tell. सर संजय अग्रवाल. अग्रवाल साहब, ठीक है. थैंक यू संजय भाई. संजय भाई थोड़ा आपको बोलना बताना पड़ेगा मुझे जहां पर आवाज का कुछ प्रॉब्लम होगा सर. यस सर बिल्कुल. Thank you, sir. Sanjay bhai, thank you. I am sorry for this technical glitch, sir. This Sanjay bhai, this technical glitch has become
a phrase with our community also very popular now. अभी हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं सर, अपन तो ऐसा होते रहेगा। नहीं वो क्या है कि नहीं, टेक्निकल ग्लिच एक ऐसा वर्ड है कि जो भी हम सीएस लोगों को भी जो रिटर्न वगैरह जो हम फाइल करते हैं सब हमको सिस्टम का ग्लिचेस वगैरह सब पता लग जाता है। तो अभी क्या है, मैं आई वाज जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर वन थिंग सर कि दैट आई कुड नॉट ज्वाइन यू इन पर्सन देयर ड्यू टू सर्टेन माय फैमिली हेल्थ कंस्ट्रेंट, माय फादर्स हेल्थ हैज बीन नॉट गुड. So, but it is always a pleasure to be part of this anything with Nagpur branch. I believe in COVID also I had 2-3 seminars, detailed seminars with Nagpur branch sir. Now, and I was just Sanjay bhai telling about that Shero Shairi of Zulfesh Shah sahab. Am I okay now sir? I'm continuing sir. Yes. So today Sanjay bhai, my topic is this proposals relating to Finance Bill 2022. You know, when this Finance Bill was presented, as we all have anxiety when we listen to the Honorable Finance Minister's speech, what are the changes in the Finance Bill or the budget? Now, one thing is very important to underline, that Honorable Finance Minister has started on a very positive note in as far as direct tax proposals and tax proposals is concerned, that she has cited one महाभारत का उन्होंने एक श्लोक साइट किया है, और वो श्लोक जो उन्होंने साइट किया है that tells the what should be the dharma in collection of taxes, and that is worth reading. That and the message of that the shlok which she has cited, the Honorable FM has cited in the budget speech, direct tax proposals opening part, that says that king should collect the taxes in the manner which follows dharma, and which should avoid any levity, which should avoid any laxity, and which should abandon any wasteful thing, and which should be with the proper sense of a dharma should be there. Now that message is very important to be noted, that yes, they appreciate that any tax collection should be with proper and it should be in proper manner, and it should be with all those what you say, that she has said that predictability should be there and certainty should be there. Now, when I see this opening part of the budget speech of the direct tax proposal of the Honorable Finance Minister, sir, and when I compare, my senior friends who are sitting in the hall can check this, sir. When we compare this part of the opening part of the budget speech with the proposals in the Finance Bill 2022, you will find some variances there, sir. I wish that all those proposals which are there in the Finance Bill 2022 are in line, Sanjay bhai, with that motto or the the slogan which Honorable Finance Minister has rationated and highlighted in the opening part of a direct tax proposals. But that is one part thing. Second thing I want to highlight at the outside is, sir, to my learned audience, that there are areas where now again this trend of reversal of judicial rulings has been starting, sir. And you can note that there are at least 4 or 5 areas where the court rulings are directly overruled, sir, by the amendments, and some amendments definitely will have retrospective salt and touch in them. Now this is I can see Zulfesh bhai sitting in the front row, if I'm not wrong, in the black. Sachin sir, Ajay. Thank you, sir. So point I was telling, sir, there are at least 4 or 5 areas where the court rulings have been overruled, and the judgments have been overruled, and the amendments have been made from retrospective effect. I remember, and all of us remember, sir, we all may remember when this particular government came in the last session of this government, it was clearly stated by then Finance Minister Jaitley Saab that no amendment will be made retrospectively. But there is a difficult and different trend this time, that we have those amendments which definitely have retrospective element, and A and B in them, they overrule the court rulings also. Now those court rulings which were favoring the taxpayer, that has been overruled. Now to say in lighter sense, that it is like this, a person, a taxpayer, sir Sanjay bhai, fights the battle in the courtroom till the court case goes till Supreme Court, and if he is able to win in the Supreme Court, then it is not, to my humble view, it is not right that it is reversed, that the Supreme Court view was not right.
and it definitely leads to a message that the litigation which has gone is not worthy of that, or malab that has been rendered totally otiose and nugatory and zero. So two things I wanted to highlight, sir, ki at least they recognize that certainty should be there and predictability should be there. But the changes which are made in Finance Bill 2022 are not absolutely in line with the same. Second thing I want to say is this new trend, or is the increased trend to overrule the court rulings and make the retrospective changes, sir. Now straightway, Sanjay bhai, I come to the important amendments of Business Head of Taxation. 4 amendments I will discuss. These are 4 sections I will take up. Section 14A, then section 37, and then section 40 and 43B. My viewers can note these 4 provisions, sir. These are very important. Section 14A, section 37, section 40 and 43 capital B. Now these are the 4 important. I am taking this first bag of changes, first basket of changes, which will tell you the what is the direction and way in which we are moving. There are 4 important provisions that I am discussing in my first leg of discussion: section 14, section 14A, section 37, section 43B, and section 40. Now, section 14A, we have all known, Sanjay bhai, that section 14A has been the provision which has become a major bone of contention between one of the major bone of contention between the department and the assessee कि कौन सा खर्चा डिसअलाउ होना है जो टैक्स फ्री इनकम से संबंधित है. अब आप सबको पता है सर कि सेक्शन 14A से संबंधित एक CBDT का सर्कुलर आया था सर, और वो सर्कुलर नंबर आप नोट कर सकते हैं. सर्कुलर का नंबर है सर्कुलर नंबर 5/2014 समवेयर सर. और उस सर्कुलर में बोर्ड ने कहा था कि अगर टैक्स फ्री इनकम करदाता अर्न नहीं भी कर रहा है तो भी सेक्शन 14A का डिसअलाउंस होगा. अभी ऐसा सर्कुलर आने के बावजूद भी बहुत सारा हाई कोर्ट्स ने ऐसा व्यू दे दिया था कि सर ये सर्कुलर गलत है, ये सर्कुलर CBDT के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अल्ट्रा वायरस है. और उसमें हमारा दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और भी सब हाई कोर्ट्स ने बोला था नहीं साहब, सेक्शन 14A could not have been applied unless and until there is positive tax-free income earned by the assessee in that year. Now, this position was almost settled to my mind, sir, by not one high court, by various high courts. But there was one contrary circular which interpreted the section 14A differently, and in that circular I told you, and it is written in memorandum explaining Finance Bill 2022. आप सब पढ़ेंगे, उसमें सब मिल जाएगा वो बात कि वो कहते हैं नहीं, circular was right and court rulings were wrong. Please note my point sharply. They say in the memorandum explaining provision of Finance Bill 2022 that circular was right and court rulings were wrong. In that background, the change has been made in section 14A by inserting an explanation there too. अब आप लोगों को मेरी आवाज सबको आ रही है सर, आई बिलीव. तो आप सेक्शन 14A के अंदर, यस मैम, थैंक यू फॉर नोटिंग, यस. सो सेक्शन 14A में मैं ये बोल रहा था कि एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, और आपको मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं सर कि ये जो फाइनेंस बिल है इसमें एक्सप्लेनेशनों का मौसम है. ये मतलब आप देखेंगे इस फाइनेंस बिल को, और उसमें कोई आदमी अगर ये विश्लेषण करना चाहे कि इसमें कितनी एक्सप्लेनेशन डाली गई है और आगे से, तो आपको बड़ा विचित्र एक वो मिलेगा एनालिसिस सर. तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये एक्सप्लेनेशनों का मौसम चल रहा है. और एक्सप्लेनेशंस जनरली कानून में क्या काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि वो लॉ को क्लैरिफाई करती है, जो मेन लॉ है उसको क्लैरिफाई करने के लिए डाली जाती है. पर अभी क्या है सर, with due respect to lawmakers and legislature, I find the explanation are going much beyond what is there in the main law. ये आप नोट कर लीजिए बात मेरा. I am very saying on record. और मैंने जितने भी 20-25 सेमिनार फरवरी में किए थे उसमें भी मैंने बोला सर कि सेक्शन ये जितना भी एक्सप्लेनेशन अभी ऐड हो रहा है, उन एक्सप्लेनेशनों में जो एक्सप्लेनेशन के मेन गुण होते हैं उनसे ज्यादा गुण है इसके अंदर. जैसे आप देखिए सेक्शन 14A का एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप. उसकी ओपनिंग लैंग्वेज ये है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट इट वाज द लॉ, इट वाज ऑलवेज द लॉ, इट इज द लॉ, इट इज ऑलवेज द लॉ, दैट अगर कोई इनकम असेसी को अर्न नहीं भी हुआ है टैक्स फ्री इनकम, तो भी सेक्शन 14A लग जाएगा. तो अब क्या बात निकला इससे, इस एक्सप्लेनेशन को डालने से? किसी ने पूछा गोयल साहब ये क्या पुराना केस जो हमारे फेवर में डिसाइड हो गया उसको इंपैक्ट करेगा? सर उसी के लिए लाया गया है ये. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया मेमोरेंडम में ही कि साहब सर्कुलर जो हमारा 2014 का था वो सही था, सर्कुलर नंबर 5 जो था वो ठीक था और कोर्ट रूलिंग्स गलत था. दूसरा बात कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन का लैंग्वेज आप मेरे दोस्त नोट कर रहे हैं सर, आगे बैठे वाले मेरे दोस्तों को आवाज आ रही है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट इट इज द लॉ, इट इज ऑलवेज द लॉ. अब ये आप देखिए, अगर आप किसी कोर्ट में
केस जाएगा और ये बात होगी कि क्या सेक्शन 14A का ये संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव है। साकेत भाई, सेक्शन 14A का संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, तो आप कैसे जज करेंगे? आप उसे, आपको मैं पढ़ के बताऊं उसकी लैंग्वेज सर क्या है? देखिए ये लैंग्वेजेस अब ऐड होने लगी हैं और मैं कोई पॉलिटिकल क्रिटिकल नहीं हूं, आपको पता है एकेडमिकल आदमी हूं। तो आप देखिए ये लैंग्वेजेस अभी आपको मिलेंगी। पिछले साल के बजट में जब वो ईपीएफ वाला अमेंडमेंट आया था, आपको याद होगा, और इस बार वाला आप नोट कर लीजिए साहब ये लैंग्वेजेस। आई हैव रेयरली सीन lawmakers deploying this language in the explanation I am saying on record. And you please note what is this language saying? This language says, for the removal of doubts, it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contained in this act, the provisions of this section shall apply and shall be deemed to have always applied. So what is this shall be deemed to have been always applied? इसका मतलब तो ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि जितना भी कोर्ट रूलिंग ने जितना भी टाइम लगाया, हमारा अरोड़ा साहब भी बैठे मेरे दोस्त दिल्ली से आए हुए, तो कहना हम ये सब क्या हुआ सर, जीरो, हम शून्य पे आ गए। मतलब आई एम सॉरी, देखिए साकेत भाई, चेंज सबको प्यारा है, चेंज इज कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट वी हैव सीन, बट ये चेंज कि आप कोर्ट रूलिंग जो सेटल हो जाए और जो प्रिंसिपल लीगली सेटल हो जाए उनको आप चेंज कर दे, और वो भी इस तरीके की लैंग्वेज से। फिर आपने वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है कि जुडिशरी हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग हैं, वो कहाँ है? अगर हर एक चीज में कोर्ट में हार जाएगा डिपार्टमेंट, और उसके भी आप देखिए एक और बात सर, मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं सब मुझे, कि ये अमेंडमेंट जो लाई गई है सेक्शन 14A में, जिसमें उन्होंने सर्कुलर को अपने को सही बताया और कोर्ट रूलिंग को गलत बताया, ये मुझे हेल्दी डेकोरम में नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी टाइमिंग भी सही नहीं है। ये रूलिंग सारी अभी नहीं आई थी कि सेक्शन 14A बिना टैक्स फ्री इनकम के नहीं लग सकता, ये रूलिंग पिछले 5-7 साल में आई थी। तो ये आज 2022 में इसको अमेंड करने का क्या सेंस है, ये मेरा जैसा व्यक्ति जरूर पूछेगा अपने आप को। So anyhow, I have told you sir that section 14A there is an explanation, और अब तो आपको सबको पता है, अब तो वो डिविडेंड वाला इनकम टैक्सेबल हो गया है, अभी तो इसका सेंस नहीं है, ये सेंस पुराने वाले केस के लिए बनता है इस अमेंडमेंट का, आप सब नोट कर रहे हैं। तो सेक्शन 14A का एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुआ है सर, इसकी ओपनिंग लैंग्वेज है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड, इट इज द लॉ, इट इज ऑलवेज द लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टैक्स फ्री इनकम अर्न्ड बाय द असेसी, 14A कुड बी अप्लाइड। उन्होंने सेक्शन 14A के शुरू में सब सेक्शन 1 में एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज डाल दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है सर? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट को ओवरराइड कर देगा सेक्शन 14A। तो 2 संशोधन किए गए हैं सेक्शन 14A के अंदर सर। पहला, सेक्शन 14A के ओपनिंग पार्ट में जो उसका फेस है, मुख है, वहां नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज डाल दिया है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कंट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट, और एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया जिसको मैंने आपको बता दिया है। इसका सेंस ये है कि जो पुराने केसेस हैं और जहां पर भी लिटिगेशन पेंडिंग है वहां वो हिट कर जाएगा सर, और वहां पर अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम नहीं भी आई हुई है तो भी सेक्शन 14A लग सकता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 14A एंड दैट इज सेक्शन 14A सबसेक्शन 1 अमेंडमेंट सर। और इसमें मैंने आपको बता दिया, उन्होंने अपने सर्कुलर को विंडिकेट किया है और कोर्ट रूलिंग्स को नलीफाई करा है, और ये बात सब मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल 2022 में आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। अब दूसरा चेंज सर, ये क्लियर हो गया सर? इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। सेक्शन 37 सर, अब ये देखिए सेक्शन 37 का चेंज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है सर। अब सेक्शन 37 मेरे को याद है, जितने भी मेरे दोस्त और मैडम और जितने मेरे फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं हॉल में सर, सेक्शन 37 वो प्रोविजन है जिनको हम जब सीए करते थे और अभी तक भी जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने इनकम टैक्स केसेस की सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है इनकम टैक्स एक्ट के बिजनेस हेड के सेक्शन 37 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो वह सेक्शन है जिसमें आपको जो खर्चे सेक्शन 30 से 36 में नहीं मिलते हैं, वो सेक्शन 37 रेजिडुअरी सेक्शन है। इट्स ए रेजिडुअरी प्रोविजन इन द बिजनेस हेड, पीजीबीपी हेड, वेयर यू आर गिवन सम एक्सपेंडिचर which is you are incurring in revenue in nature only and exclusively for the purpose of business, which is not capital in nature and which is not personal in nature. Now section 37 sir इनकम टैक्स एक्ट के पीजीबीपी के हेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो रेजिडुअरी प्रोविजन है, उसमें वो खर्चे मिलते हैं जो अदरवाइज सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड नहीं। अब इसमें ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन था, 2 एक्सप्लेनेशन थे जो अभी की तारीख में हमारे सामने, आप सब नोट कर लें, आपको याद है, आप याद करेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 है जिसमें लिखा है कोई भी खर्चा किसी भी एसएससी ने किया सर, वो किसी भी कानून का उल्लंघन में किया तो वो अलाउ नहीं होगा। मतलब एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी ऑफेंस और प्रोहिबिटेड पर्पस विल नॉट बी अलाउड, दैट इज एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37। एक्सप्लेनेशन 2 कब आया था? 2014 में आया था। आपको पता है सीएसआर वाले खर्चे के लिए उन्होंने बोला था हम आपको उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे। अब जो एक्सप्लेनेशन आई है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है। अब वो क्या है? उसमें भी उन्होंने लैंग्वेज देखिए क्या लिखी है,
अब वो कहते हैं साहब, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offense or which is prohibited by law under explanation 1 shall include and shall be deemed to have always included these following 3 expenditures incurred by the assessee. मैं सरल कर देता हूं सर, मतलब ये एक्सप्लेनेशन 3 किसको एक्सप्लेन कर रही है सर? पहले वाली एक्सप्लेनेशन 1 को, किस सेक्शन में? 37 में। मतलब ये एक नया, मैंने एक और चीज देखी अपने लिए, अपने अध्ययन में सर, कि जहां एक एक्सप्लेनेशन का पदार्पण हो रहा है या इंट्रोडक्शन हो रहा है, उस एक्सप्लेनेशन का काम क्या है? एक दूसरी एक्सप्लेनेशन को समझाना। आप समझ गए सर? साकेत भाई, एक्सप्लेनेशन 3 इज एडेड टू एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन 1। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि कोई भी खर्चा जो आपने किसी ऑफेंस के लिए, प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए किया है, वो आपको बिजनेस खर्चा अलाउ नहीं होगा, बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते हो। अब उसकी व्याख्या की जा रही है, उसकी एलेबोरेशन की जा रही है, उसका विस्तृत वर्जन मिल रहा है। 3 टाइप के खर्चे बता दिए गए हैं जो लिखा है शेल बी। ये जो 3 टाइप के खर्चे हैं ये इंक्लूसिव है, मतलब इसके अलावा भी हो सकता है कोई और। ये 3 तो माने ही जाएंगे जो इसमें लिखे हैं एक्सप्लेनेशन 3 में, कि वो खर्चे आपको प्रोहिबिटेड है, वो नहीं मान दिए जाएंगे। वो कौन से 3 खर्चे साकेत भाई? 3 खर्चे। पहला खर्चा जो इसमें उल्लेख किया गया है एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर, जो सेक्शन 37 की एक्सप्लेनेशन 3 है, उसमें पहला खर्चा है, पहला लाइन आइटम क्या है सर? कि कोई भी खर्चा किसी भी करदाता ने किया फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस अंडर लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब यहां साकेत भाई आप नोट कर लीजिए, वेरिएशन क्या है कि जो हम एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़ते हैं ना, ऊपर वाली को, उसमें इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया की बात नहीं थी कहीं। मतलब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि लेटर से आपका एक एसएससी है नागपुर का, वो इंडिया से बाहर भी संतरे वगैरह एक्सपोर्ट करता है लेटर से, और उसका कोई वायलेशन हो जाता है बाहर के लॉ का, तो वो खर्चा क्या, जो बाहर के लॉ का उसने वायलेट करके इंडिया के पीएनएल अकाउंट के सामने क्लेम किया है, तो वो सेक्शन 37 की एक्सप्लेनेशन 1 में डिसअलाउ हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई खर्चा जो बाहर के कानून को उल्लंघन कर रहा है और क्लेम हो रहा है इंडियन पीएनएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि आप वो खर्चा, क्योंकि वो उससे संबंधित है जो इंडियन एक्टिविटी से संबंधित है, रेजिडेंट की इनकम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाली एक्सप्लेनेशन में बात की क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से इंडिया और हिंदुस्तान के बाहर का वायलेशन वाला लॉ भी आएगा नहीं आएगा। अब उन्होंने लिख दिया है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? इट विल बी डिसअलाउड। दूसरा, मतलब इसमें पहले वाले में वेरिएशन क्या आप नोट कर लीजिए, इन इंडिया के साथ उन्होंने आउटसाइड इंडिया भी लिख दिया है। मतलब एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी ऑफेंस और एनी प्रोहिबिटेड पर्पस व्हिच इज ऑफेंस इन इंडिया, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, दोनों को डिसअलाउ कर दें। दूसरी बात, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, इसका तो मैं बता रहा हूं आपको कि इसके ऊपर इन्होंने 15 पेज लिख दिए। ये जो दूसरा लाइन आइटम है ना, एक्सप्लेनेशन 3 जो नहीं डाली है, उसका दूसरा लाइन आइटम बोल रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। एक्सप्लेनेशन 3 ही डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 37 डिस्कस कर रहे हैं, उसकी लाइन आइटम 2 डिस्कस कर रहे हैं। लाइन आइटम 2 क्या है? एनी पर्सन, अब इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए सर। डॉक्टर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं, वो डॉक्टरों को कई बार इंसेंटिव दे देती है, फ्रीबीज दे देती है। तो एक सर्कुलर था इस पे भी बोर्ड का, सर्कुलर नंबर 5/2012, जिसमें सीबीडीटी ने कहा था कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी डॉक्टर को कोई भी इंसेंटिव देगी और जो उनकी मेडिकल गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती हैं, तो उनके हाथ में खर्चा अलाउ नहीं होगा। किसके हाथ में? फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ में, सेक्शन 37, वो प्रोहिबिटेड माना जाएगा। एनी हाउ, अब उस पर बहुत झगड़ा चला सर, कोर्ट्स के बहुत सारे, आईटीटी के, आपके बॉम्बे आईटीटी के बहुत सारे ऑर्डर्स आए, इस पे एक स्पेशल बेंच भी बन गया था, वो भी सब्जुडाइज था मैटर। इतने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लोग सब नोट कर लें सर ये फैसले को, ये अभी आया है, फरवरी का ही फैसला बता रहा हूं आप सबको। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लिख दिया है सर, एपेक्स लैबोरेटरीज। उस फैसले में यही इशू जो इन्होंने अमेंडमेंट करके डाला है, वही विषय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स लैबोरेटरीज में डिसाइड कर दिया है कि शुरू से ही कानून ये था इनकम टैक्स के अंदर, एक्सप्लेनेशन 1 के टाइम से ही, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एपेक्स फार्मास्यूटिकल का एक्सप्लेनेशन 1 का केस था, जहां डिपार्टमेंट ने स्टैंड लिया था, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो भी इंसेंटिव दिए हुए थे डॉक्टर्स को, सब डिसअलाउ कर दिए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया है सर, फरवरी 2022 में, जस्टिस रविंदर भट्ट साहब की बेंच ने, जस्टिस ललित एंड जस्टिस रविंदर भट्ट की बेंच ने, इन एपेक्स लैबोरेटरीज। तो अब आप ये बोल सकते हैं अब कि ये जो पुराना तो अलाउ होगा ही नहीं, एपेक्स लैबोरेटरी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया फरवरी 22 में, आगे के लिए भी ये जो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, अब वो समझ लीजिए क्या है। लाइन आइटम 2, अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस हेड में कोई ऐसा खर्चा क्लेम करता है, जो खर्चा जिसने लिया है, मतलब जिसको बेनिफिट मिला है, उसके हाथ में लेना पाबंदित है, मतलब उसमें उसको परमिशन नहीं है
एनी बेनिफिट गिवन बाय एनी टैक्स पेयर टू एनी पर्सन, जो रिसिपिएंट है अगर उसका जो गवर्निंग कंडक्ट रेगुलेशन है, जैसे उसका कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसको परमिट नहीं करता है वो इंसेंटिव लेना, बेनिफिट लेना, तो वो जो देने वाला है उसके हाथ में वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सर। पहला था कि हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर किसी भी लॉ को आपने वायलेट किया, आपका खर्चा अलाउ नहीं होगा। दूसरा है, आपने किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा बेनिफिट दिया जो लेने वाला व्यक्ति है उसका जो कंडक्ट रेगुलेशन, जो उसको बाइंडिंग कंडक्ट रेगुलेशन है, वो उसके हिसाब से सही नहीं है, तो भी खर्चा अलाउ नहीं होगा देने वाले के हाथ। तीसरा पॉइंट, लाइन आइटम 3, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी कंपाउंडिंग करा रहे हैं, किसी भी ऑफेंस की कंपाउंडिंग, हिंदुस्तान के कानून के वायोलेशन की या हिंदुस्तान के बाहर के कानून के वायोलेशन की, कोई भी कंपाउंडिंग करा रहे हैं सर, तो आपका खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो ये कंपाउंडिंग बहुत जगह होती है सर। पहले कोर्ट के रूलिंग्स कुछ ऐसे थे जो शायद फेवर में भी थे। अभी इस अमेंडमेंट के आने से आपको कोई भी कंपाउंडिंग, हाँ बशर्ते वो कंपाउंडिंग ऑफेंस की होनी चाहिए। ऑफेंस मतलब जो दंडनीय, पनिशेबल ऑफेंस, आप समझ रहे हैं सर। तो कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस मैडम फॉर एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो भैया देखिए, जो भी व्यक्ति कानून हिंदुस्तान का तोड़ रहा है या हिंदुस्तान के बाहर का तोड़ रहा है सर, दोनों एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 के लिए बराबर है। आई होप दिस इज क्लियर। और उन्होंने ये दोनों लाइन आइटम पे लिख दिया, जहां कंपाउंडिंग वाला लिखा है वहां भी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया लिख दिया, और जहां पहला लिखा है कि ऑफेंस के लिए है, कोई ऑफेंस करने के लिए, तो भी वो आउटसाइड इंडिया वाला भी इंक्लूडेड है। तो जो व्यक्ति, जैसे मैं एक बात बोल रहा था सर, कि जो भी व्यक्ति ऑडिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब होते हैं, बिजनेसमैन होता है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसको खर्चा क्लेम करना है और उसको इस नेगेटिव लिस्ट से बाहर आना है, तो वो खर्चा ना केवल इंडियन लॉ को कंप्लाई कर रहा हो, तो बाहर वाले लॉ को भी वायलेट नहीं करना चाहिए, बाहर वाले लॉ के हिसाब से भी सही होना चाहिए, वरना आपको खर्चा नहीं मिलेगा। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 37, एडिंग 3 आइटम्स। इसमें वो जो बेनिफिट वाला पॉइंट है ना सर, वो 360 डिग्री। अभी देखिए एक और चेंज है उससे रिलेटेड, कि अगर आपने किसी को बेनिफिट दिया और वो आदमी को बेनिफिट लेना वर्जित है, तो उसका तो देने वाले का हाथ में खर्चा तो अलाउ नहीं होगा, बट जो लेने वाला है, आपको पता है लेने वाले के हाथ में क्या होगा सर? लेने वाले के हाथ में सेक्शन 28 है और क्लॉज 4 नोट कर लीजिए। सेक्शन 28 क्लॉज 4, जिसको बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस के दौरान, उसके हाथ में इनकम चार्जेबल हो जाएगी पीजीबीपी में, ब्रॉडली बता रहा हूं, 28 क्लॉज 4 में। और जिसको टैक्स लगना है 28(4) का, उसका उन्होंने इसी बजट में एक सेक्शन डाल दिया है, जो आपने पढ़ा भी होगा, 194R टीडीएस वाला सेक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट सर? वहां 194R में उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन डाल दी है कि एनी पर्सन प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट टू एनी पर्सन विल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194R। तो आपको जिसने लेना है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी कहीं नहीं गई है, जिसने दिया है उसके हाथ में खर्चा अलाउ कब होगा, ये बात कर रहा था। एनी हाउस, ये क्लियर हो गया सर सेक्शन 37 वाला चेंज? सर क्लियर है सर? यस सर। थैंक यू सर। अगला पॉइंट सर, सेक्शन 40 एक्सप्लेनेशन 3। देखिए इसमें मैंने ऐसे ही नहीं कहा आपको एक्सप्लेनेशन का मौसम है संजय भाई। देखिए अगला एक्सप्लेनेशन 3, उसमें भी एक्सप्लेनेशन 3 ऐड हुआ था सेक्शन 3 में, सेक्शन 37 में, और सेक्शन 40 में भी नया एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ, एक्सप्लेनेशन 3। देखिए एक्सप्लेनेशनों का डेंसली पॉपुलेटेड हो गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 40 बता रहा हूं, सेक्शन 40 की एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब ये भाई साहब इन्होंने, साहब आप लोग सब नोट कर सकते हैं सर, ये 1/4/2005, इसमें तो इन्होंने बकायदा लिख दिया है कि ये 2005 से लागू होगी, मतलब 2005 मतलब 17 साल पीछे, 1/4/2005। क्या कह रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन में कि वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर था सीसा गोवा का, और जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर था चंबल फर्टिलाइजर का, कि क्या इनकम टैक्स के अंदर जब कोई आप इनकम कंप्यूट करते हैं, तो क्या जो एजुकेशन सेस है उसका खर्चा मिलेगा नहीं मिलेगा इनकम टैक्स के ऊपर अलग से, और उसको टैक्स का पार्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? तो बॉम्बे हाई कोर्ट सीसा गोवा एंड राजस्थान हाई कोर्ट चंबल फर्टिलाइजर, both these high court said no, education cess paid on income tax is different from income tax, and so education cess can be allowed as business expenditure under section 37। और आप सबको पता है सर, एक सेक्शन है 40 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें स्मॉल ए रोमन 2A करके एक प्रोविजन है, जिसमें लिखा है कि इनकम टैक्स का खर्चा नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो डिपार्टमेंट का कहना यह था कि नहीं साहब, सेस जो दिया जा रहा है वो भी इनकम टैक्स का पार्ट है और उसको खर्चा नहीं मिलना चाहिए।
but Bombay High Court took the favorable view, Rajasthan High Court took the favorable view. अब ऑफ लेटली क्या हुआ सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। कोलकाता आईटीटी ने एक जजमेंट दिया था कनोरिया केमिकल का अभी 2021 में, कनोरिया केमिकल का आप नोट कर सकते हैं कोलकाता बेंच का। उसमें उन्होंने कहा नहीं साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है और राजस्थान हाई कोर्ट भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है के श्रीनिवासन 83 ITR 26, के श्रीनिवासन आप नोट कर सकते हैं 83 ITR पन्ना नंबर 26। अब वो क्या कहता है कि नहीं साहब, जो सेस है वो टैक्स का पार्ट है। तो कोलकाता आईटीटी ने कनोरिया केमिकल के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं माना, राजस्थान हाई कोर्ट नहीं माना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के श्रीनिवासन लगाकर बोला एजुकेशन सेस पेड ऑन इनकम टैक्स कैन नॉट बी अलाउड एज एलिजिबल डिडक्शन। अब उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है वो कलकत्ता आईटीटी के ऑर्डर को और के श्रीनिवासन के ऑर्डर को बेस बनाकर किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है और राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, दैट इज रिटन इन मेमोरेंडम। और कलकत्ता आईटीटी का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में रिलाई कर रहा है वो सही है, इसीलिए उन्होंने 1/4/2005 से इस अमेंडमेंट को किया है। और उसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन जो नहीं डाली है सर सेक्शन 40 में, उसमें लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that for the purpose of this subclause the term tax shall include and shall be deemed to have include any cess। तो सेस को उन्होंने मना कर दिया है सर 2005 से लेकर आज तक 2022 तक कभी भी सेस का खर्चा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर और राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर नलीफाई हो गया। और हम कहां आ गए, हम वहीं से आ गए कि साहब नहीं, ये शुरू से 1/4/2005 से अलाउ नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि साहब जो पहले अलाउ हो गया उनका क्या होगा। सर डिपार्टमेंट अपील में अगर जाने का टाइम लिमिट बचा है, बिलेटेड अपील फाइल करके उसको रिवर्स भी करा सकता है, रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकता है। जैसे लेटर से ट्रिब्यूनल ने आपको खर्चा दे दिया एजुकेशन टैक्स का, तो डिपार्टमेंट उसका MA फाइल कर सकता है, रिकॉल एप्लीकेशन। आई होप दिस चेंज इज क्लियर संजय भाई। तो 3 चेंज मैंने जो बताया आपको, सेक्शन 14A उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव टच था पूरा, और सेक्शन 37 वाला चेंज उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव टच था, और ये जो सेक्शन 40 वाला ये तो प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। अभी हम चौथा चेंज डिस्कस कर रहे हैं सर, सेक्शन 30। अब आप सबको पता है 43B क्या है। 43B वो सेक्शन है बिजनेस हेड में जहां खर्चा आपको पेमेंट बेस पे मिलता है। अगर आप कुछ भी अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, पर आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर देंगे, दैट इज 43B फिलोसफी। अब 43B के अंदर बहुत सारे खर्चे आ गए हैं सर। अब एक इशू इस केस में आप नोट करें सर, सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस केस का नाम है MM एक्वा लिमिटेड 436 ITR 582 436 ITR पेज नंबर 582 MM एक्वा। उसके अंदर क्या हो रहा था सर कि वहां MM एक्वा ने अपने जिन लेंडर से पैसा उधार पे लिया हुआ था उनको उन्होंने ब्याज देना था MM एक्वा ने, और वो ब्याज नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया सर, उनके साथ एक एग्रीमेंट एंटर किया, रिहेबिलिटेशन प्लान MM एक्वा ने और उनके बोरोवर्स ने और लेंडर्स ने सॉरी। और उसमें क्या तय हुआ कि उनका जो ब्याज देना था वो ब्याज की जगह उन्होंने उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब MM एक्वा ने उस ब्याज को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना था, जो पेमेंट बेस पे मिलता है 43B में, उसको उन्होंने डिबेंचर दे दिया MM एक्वा ने उसके बदले में, ब्याज के बदले, और डिबेंचर देकर उसको क्लेम कर लिया कि खर्चा अलाउएबल है 43B। अब डिपार्टमेंट ने क्या कहा सर कि डिपार्टमेंट कहता है नहीं साहब, जब आपने MM एक्वा ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट की जगह डिबेंचर दे दिए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो एक लायबिलिटी की जगह दूसरी लायबिलिटी ने ले ली। डिपार्टमेंट सेट 43B के हिसाब से क्लेम अलाउ नहीं हुआ। अब ये मामला MM एक्वा का सुप्रीम कोर्ट में अभी आया और अगस्त 21 में इसका फैसला आया था। और उस फैसले में सर आप नोट कर लें, MM एक्वा का साइटेशन मैंने बता दिया 436 ITR 582। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था नो, इफ ए borrower gives to the lender in lieu of interest the debentures, then it is discharge of the liability and it is allowable under 43B. That was Supreme Court decision in MM एक्वा. Now it has been overruled. कैसे? अब आप पढ़ेंगे सेक्शन 43B में जाइए सर, उसकी एक्सप्लेनेशन 3C जो है उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया है। सेक्शन 43B की एक एक्सप्लेनेशन थी पहले से, 3C नंबर था 3C। उस 3C में उन्होंने कुछ वर्ड डाल दिए, अल्फाज डाल दिए, शब्द डाल दिए। वो क्या कहते हैं, लोन और बोरोइंग के आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 में ये वर्ड डाल दिए सर, और एनी डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच द लायबिलिटी टू पे इज डेफर्ड टू ए फ्यूचर डेट। मतलब कि उनका कहना ये कि अगर आप ब्याज के बदले में अगर कोई अभी डिबेंचर दे देंगे या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देंगे तो आपका लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। तो कब माना जाएगा लायबिलिटी का डिस्चार्ज सर? जब आप एक्चुअली पेमेंट कर देंगे। तो इस अमेंडमेंट से 2 बातें निकल के आई कि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था
वो MM एक्वा लिमिटेड का 436 ITR 582 इट इज नलिफाइड, इट इज ओवर रूल। नाउ इसको देखकर पढ़ के तो ऐसा लगता है ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है सर, 1/4/23 से हुई है, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 से है। बट इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे, इसके मेमोरेंडम में आप जाएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि नहीं साहब, हमारी शुरू से लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि ये खर्चा हम तभी दे जब पेमेंट हो जाए, एक्चुअली में डिबेंचर इशू हो जाए तब ना मिले। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर ऐसी अमेंडमेंट्स के कोर्ट के सामने जाएंगी तो कोर्ट का रुख ज्यादातर इनको रेट्रोस्पेक्टिव मानने का होगा, प्रोस्पेक्टिव मानने का नहीं होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव इंटेंट ये कह दी गई है। और लेजिस्लेटिव इंटेंट कहां बताई गई है? मेमोरेंडम में बताई गई है। संजय भाई क्लियर है? हाँ सर। तो आप देखिए एक और बात, मजा जब पहले हम कई बार बजट डिस्कस करते थे ना, मेरे को याद है मैं नागपुर में भी एक बार पहले, बहुत पहले आया था जब बजट डिस्कस करने, तो भी हम ढूंढते थे उन अमेंडमेंट्स को संजय भाई कि कहां पर कोर्ट के रूलिंग्स ओवर रूल हुए हैं। अब आपने देख लिया ये चारों अमेंडमेंट जो है ना, ये कोर्ट के रूलिंग्स को इफेक्ट कर रही है। सेक्शन 14A, सेक्शन 37, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 43B, चारों अमेंडमेंट। एनी हाउस मैं आगे बढ़ता हूं सर। अगला चेंज जो मैं ले रहा हूं सर डिस्कशन के लिए, दैट इज सेक्शन 68 एंड 79A। ये प्रैक्टिकल अमेंडमेंट है और ये आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना। मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूं संजय भाई समझने की, पर मेरे समझ में कम आ रही है। जितना मैं इनको पढ़ने की कोशिश करता हूं उतना मैं इनको पढ़ने के बाद समझ नहीं पाता हूं कि क्या है। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है ना पूरा? अब देखिए सेक्शन 68 ले लेता हूं मैं। सेक्शन 68 को इसलिए थोड़ा प्यार करता हूं सर संजय भाई कि हमारा जो ITAT में, हाई कोर्ट में और कोर्ट्स में ना ब्रेड एंड बटर का एक बहुत बड़ा सोर्स सेक्शन 68 है। आप सब समझेंगे लाइटर साइड पे इस बात। और सेक्शन 68 हर एक आदमी को हिट करता है। देखिए बड़ा करदाता, छोटा करदाता, मध्यम वर्ग का करदाता, भाई साहब किसी पे भी लग सकता है। सेक्शन 68 इतना इगैलिटेरियन है कि उसमें कोई भी कैश क्रेडिट किसी के हाथ में भी फंस सकता है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए इसके अमेंडमेंट की बात करते हैं। हमने असेसमेंट ईयर 13-14 से मैं बोलता हूं, फाइनेंस एक्ट 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब एक अमेंडमेंट करके गए थे, उससे याद दिलाता हूं। और उन्होंने बोला था संजय भाई कि सेक्शन 68 में जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो शेयर कैपिटल रिसीव करेगी तो उसको शेयर होल्डर का सोर्स ऑफ सोर्स भी बताना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर पैसा कहां से लाया बताना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट कब करी गई थी? फाइनेंस एक्ट 2012 से करी गई थी। पण ऍडमिन जातो तो तिथे, म्हणजे म्हणून मी आता जास्त काढा नाही करू शकत इथं, भलतंच काहीतरी करायला जाऊन भलतंच काहीतरी व्हावं। हा उद्याच्या इव्हेंटची झूम लिंक सर मेरे साथ किसी और का आवाज आ रहा है। मला डिटेल्स पाठवून द्या। ते खालची आहे तेच वाली का, तेच का नाव झुंबा दाबा? झुंबावाला झुंबाचं नाव ते वालं सेकंड वालं होतं का ते काल? नाही, उद्याचं सीपी सेमिनार नाही आहे। उद्याचं नाही आहे ना, उद्याचं नाही आहे। सर, ये त्याचं मेरी मला आवाज matter नहीं है, सर। पाठवून द्या, मग मी बनवून तुम्हाला लिंक पाठवून देतो। मॅटर किती वेळ, किती वाजताचं आहे, काय आहे ते नाव मी तुम्हाला पाठवते। सर ये मेरी आवाज नहीं थी सर, सॉरी। कैन आई कंटिन्यू संजय भाई? Yes, you can continue, sir. थैंक यू सर। रिस्पॉन्स देने के लिए आपसे नहीं सर, ये हमारा जो दूसरा दोस्त का माइक किसी का खुला है, उनको बोलिए जो आपके एडमिन का किसी का माइक खुला है क्या? कहाँ से ये आवाज आ रहा है मेरा? इको हो रहा है। कर दिए सर, कर दिए। सॉरी मैं ये कह रहा था सर, सेक्शन 68 में फाइनेंस एक्ट 2012 वन ब्रॉट आउट वन वेरी अमेंडमेंट, ऑल्दो उस अमेंडमेंट को आज तक हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात करते हैं, और जो क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर कैपिटल रिसीव करती है उसमें डाला गया था फाइनेंस एक्ट 2012 से कि कंपनी जो पैसा रिसीव कर रही है शेयर कैपिटल का, वो शेयर होल्डर का सोर्स भी बताएगी। तो हम आज तक कोर्ट्स की डिसीजंस नहीं आ पाई हैं इस फाइनेंस एक्ट 2012 के फर्स्ट प्रोवाइजो के ऊपर कि जब हम शेयर होल्डर के सोर्स की बात करते हैं, सेकंड लेयर की बात करते हैं, तो हम कितना पीछे जाने की बात करते हैं। आई होप माय व्यूअर्स आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब उन्होंने इसके अंदर एक और चीज डाल दिया है। एक और चीज का मतलब एक और वेरिएंट तो अब आप सब समझते हैं, हमने डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, सब वेरिएंट देख लिए। वेरिएंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है। अभी ये एक और वेरिएंट है सर, सेक्शन 68 में प्रोवाइजो, एक और प्रोवाइजो का अभी स्वागत करिए आप। उसमें ये लिखा हुआ है प्रोवाइजो में कि अगर कोई करदाता किसी से लोन रिसीव करेगा, बोरोइंग रिसीव करेगा, या एनी अदर अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम, एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, एनी सच अमाउंट मतलब लोन हो गया, बोरोइंग हो गया, और एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अगर कोई भी टैक्स पेयर किसी भी व्यक्ति से एनी लोन रिसीव करता है, एनी बोरोइंग रिसीव करता है, एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड रिसीव करता है, तो उसका ओनर्स क्या होगा? सेक्शन 68 में एनलार्ज कर दिया गया है उस बर्डन को बोरोवर के। उसमें बोल दिया गया है कि लेंडर का सोर्स भी बताना पड़ेगा। अब आप सोचिए संजय भाई,
मैं इसको ऐसे विश्लेषण करता हूं कि लोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। लिख लीजिए जरा, कागज पे कहीं लिख रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के और लिख के भी। लोन कैसे कैसे हो सकते हैं ये हमने अपने अनुभव से देखा। लोन ऐसे भी हो सकते हैं भाई साहब जो बैंक से आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है बकायदा, जो बकायदा एक क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल रहा है। और एक लोन मिल रहा है जो फ्रेंडली लोन मिल रहा है। कपिल गोयल को लोन दे दिया संजय भाई ने या जुल्फेश शाह ने या साकेत जी ने, वो फ्रेंडली लोन हो गया। और फ्रेंडली लोन भी कई बार ऐसे होते हैं जो कई बार दशक बीत जाता है, पे बैक नहीं होते हैं, वो लोन वहीं रहते हैं। ऐसे भी लोन होते हैं। आप समझ गए मैं कौन से लोन की बात कर रहा हूं, जो वापिस नहीं होते, रह जाते हैं। तो दो लोन हुए। एक तो वो जो लोन जिसने दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, जो कैटेगरी 1 का लोन है, और एक फ्रेंडली लोन जो दिया गया वो भाई नहीं, फ्रेंड की इच्छा नहीं हुई मांगने की वापस, तो फ्रेंड के पास ही रहा, दूसरे फ्रेंड के पास, वो दूसरा लोन। इसका एक और, इनके और भी वैरायटी लिखी है अभी। कुछ लोन ऐसे होते हैं जिन पे आप ब्याज भी देते हैं, टीडीएस भी काटते हैं, और कुछ लोन ऐसे होता है जिन पे आप कुछ ब्याज नहीं देते हैं। मतलब ये दूसरा कैटेगरी लिखिए, इंटरेस्ट बियरिंग एंड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। ये दूसरा कैटेगरी हुआ कि जहां ब्याज दे रहे हैं और ब्याज नहीं दे रहे हैं। तीसरा कैटेगरी सर, एक लोन वो लोन है जहां आपने चेक से लोन लिया है या कैश से लोन लिया है, वो भी कोई मैटर नहीं करता। मतलब इस प्रोवाइजो में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ये बताने के लिए लिखवा रहा हूं आपको कि चेक का लोन, कैश का लोन, इंटरेस्ट बियरिंग लोन, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लोन, एनबीएफसी वाला, बैंक वाला लोन, या प्राइवेट लोन, फ्रेंडली लोन। आई होप माय व्यूअर्स आर गेटिंग दिस पॉइंट सर, मेरे ऑडियंस। और चौथा पॉइंट, वो लोन जो एकोमोडेशन एंट्री की उसमें आता है। एकोमोडेशन एंट्री आप सब समझते हैं ना, जिसमें डिपार्टमेंट कहता है कि आपने एंट्री ले लिया है, किसी को कैश देकर चेक ले लिया है। और जो ऐसा नहीं आता है, मतलब इसमें सब बराबर है, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। देखिए ये प्रोवाइजर जिसने भी बनाया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें कोई उन्होंने भेद नहीं किया है, उनके लिए सब बराबर है। और आप बोलेंगे गोयल साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या आप इन सब लोनों को जो मैंने आपको लिखवाए, ये सब बराबर हो सकते हैं? कभी भी हो सकते हैं संजय भाई? बिल्कुल नहीं हो सकते। और ये सॉरी, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आई एम ए वेरी स्मॉल मैन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बट सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट देन? व्हाई? और आपको पता है अगर हम इसको नहीं डिस्चार्ज कर पाए तो इसका क्या हर्ष निकलेगा? भाई साहब शनि भगवान सब पे दया करें, आज शनि देव का वार है, ओम शम शनिचराय नमः। और 7.5 हम सबको पता क्या होती है। अगर आप इस 68 के ट्रैप में आ गए तो आप पे 7.5 लग जाएगी। और आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं 7.5 लग जाएगी? ये लिख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 115 बीबीई है ना, 68 लग गया तो 115 बीबीई लग जाएगा। और 115 बीबीई लगकर आपका कितना टैक्स बन जाता है आपको पता है ना? 80%। कितना टैक्स? मतलब जितनी इनकम नहीं उससे ज्यादा टैक्स, 100% से भी ज्यादा। अरे भैया ऐसा जादू कहां होता है? ऐसा जादू हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर धारा 115 बीबीई में होता है सर। और वो किससे जुड़ी हुई है? वो 68 से जुड़ी हुई है। तो सोचिए संजय भाई कि अगर हम सोर्स ऑफ सोर्स प्रूव नहीं कर पाए टू द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द एओ, बोरोवर नहीं प्रूव कर पाया, तो भाई साहब प्रॉब्लम में कौन आ गया संजय जी? नहीं, प्रॉब्लम में तो बोरोवर आ गया और उस पे 115 बीबी भी लग गया। और सोचिए कि अगर कपिल गोयल आपसे लोन मांग रहा है, आप मेरे दोस्त हो, और मैं आपको कहता हूं संजय भाई आप मुझे लोन तो दे रहे हो, एक काम करो यार, अपना सारा लिखा लोखा जोखा भी दे दो, आप कहां से पैसा लाए हो? आप कहोगे यार अच्छे आदमी हो यार, चल आप जाओ अपने घर वापस जाओ। कहा कैसे लोन मांग रहे हो? सॉरी, मतलब कोई आदमी आपकी मदद कर रहा है लोन देने के लिए, आप उससे कहोगे पहले कि प्लीज गिव मी लोन लेटर, फर्स्ट गिव मी योर एंटायर बैकग्राउंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू माय एओ इन द फेसलेस मोड, नॉट इन द फेस मोड। समझ लीजिए सर, ये कानून मेरे हिसाब से, मेरे और भी जो कंटेम्प्रेरी स्पीकर्स हैं मैंने उनके लेख पढ़े, ये अच्छा कानून नहीं है सर। मेमोरेंडम में क्या लिखा है? देखिए मेमोरेंडम में ये लिखा है सर कि जहां उनको लगता है कि लोन में लोन में कोई एंट्री वाला, एकोमोडेशन एंट्री वाला टच है, तो हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। पर जब इन्होंने अमेंडमेंट किया है तो ऐसा कोई थोड़ा लिखा है कि जो एकोमोडेशन एंट्री के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उन्हीं पे सेक्शन प्रोवाइजो लगेगा। इसमें तो कोई भी लोन और बोरोइंग आप लेंगे सब पे आपको सोर्स ऑफ सोर्स प्रूव करना है, और आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब आप प्रॉब्लम में रहेंगे। अब किसी ने पूछा संजय भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कि क्या इसके अंदर लोन और बोरोइंग के अलावा भी कुछ एडवांस आ सकता है? नोट करिए, एडवांस आ सकता है। क्वेश्चन 1 भाई, लोन बोरोइंग और एनी सच अमाउंट लिखा है सर। अब एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अब लोन और बोरोइंग का इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड तो है नहीं सर संजय जी। कोर्ट का मीनिंग पे जाएंगे तो लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट के अंदर मुझे लगता है ये एनी सच अमाउंट डालने का उनका पर्पस है कि इसको वाइडर स्पेस देना। और एडवांस में जैसे मान लीजिए एडवांस भी 2 टाइप के होते हैं सर, आप समझते हैं। एक तो होता है ट्रेड एडवांस और एक होता है जहां आप नॉन ट्रेड एडवांस।
अब मेरे हिसाब से ट्रेड एडवांस तो कभी नहीं आना चाहिए सर, इसमें उसका इंटेंशन नहीं है। अब बच गया ट्रेड एडवांस के अलावा वाला एडवांस, वो फंस सकता है सर, कैपिटल एडवांस वाला, जैसे आपने किसी कैपिटल एसेट के अगेंस्ट एडवांस रिसीव कर लिया। तो एनी हाउ दिस अमेंडमेंट इज डेफिनेटली ट्रिकी अमेंडमेंट। मुझे याद है मेरे जन्म से पहले का, मेरा 1982 का बॉर्न हूं सर मैं, मेरे जन्म से पहले की जजमेंट थी एक सुप्रीम कोर्ट की, आप सबने पढ़ रखी है, दौलतमल रावतमल 87 ITR 349, लिख लीजिए जजमेंट को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 87 ITR 349, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दशक पहले ये बात बोल दी थी कि सोर्स इनकम टैक्स में सेक्शन 68 में बताना जरूरी नहीं है, और 87 ITR 349 की वो जो आत्मा थी जजमेंट की, अब वो ओवररूल हो गई है सर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। क्लियर है संजय भाई? यस सर। तो ये अमेंडमेंट बहुत ट्रिकी है सर, आने वाले टाइम में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग द लोन्स एंड एडवांस। और किसी ने फाइनेंस में चेयरमैन साहब से पूछा सीबीडीटी के कि सर आप कितना लेयर पीछे जाएंगे इसमें, तो उन्होंने बोला हम उतना लेयर पीछे जाएंगे जहां हमें कैश नजर आएगा। आप समझ गए? तो बहुत खतरनाक है सर ये प्रोविजन। मतलब इसका कोई, मेरे से किसी ने भी पूछा मिस्टर गोयल 1 लेयर पीछे जाएंगे, 2 लेयर पीछे जाएंगे, 3 लेयर पीछे जाएंगे, 4 लेयर पीछे जाएंगे, 5 लेयर पीछे जाएंगे, तो वो सत्य आ गया। अभी जो सीबीडीटी चेयरमैन साहब का पोस्ट बजट कोई अखबार में वालों ने पूछा, उन्होंने मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो हमारा पर्पस तो कैश तक पहुंचना है। और आप सोचेंगे पिटाई मतलब किस किस पे लग जाएगा, वो जो चेन में सब लोग आ गए ना, वो जो जिसके यहाँ पर भी वो ट्रांजेक्शन घूम रही है, आप समझ रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सो दिस इज ए वेरी tricky amendment, and to my mind it brings the owners of loan and borrowing to a next level now. अगला अमेंडमेंट सर सेक्शन 79A। 79A, अब 79A सेक्शन क्या है सर? बहुत सारे इनकम टैक्स के संजय भाई जो भी सर्च होते हैं, सर्वेज होते हैं, वो बिना सरेंडर के अनडिस्क्लोज इनकम के कंक्लूड नहीं होते हैं। ये बात सत्य है, मतलब प्रैक्टिकल ट्रूथ है कि जब भी किसी एसएससी के ऊपर सर्च होता है इनकम टैक्स का या सर्वे होता है, हमारा अनुभव ये कहता है, कंक्रीट अनुभव, कि बिना सरेंडर के सर वो सर्च और सर्वे कंक्लूड नहीं होता। अब क्या सेक्शन है ये 79A, नोट कर लीजिए सर। अगर सर्च में और सर्वे में कोई अनडिस्क्लोज इनकम पाई जाएगी तो उस इनकम के अगेंस्ट कोई भी हेड का कुछ भी लॉस, लूज और अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। ये अमेंडमेंट कहां हुई है? लॉस सेट ऑफ वाले चैप्टर में हुई है। सेक्शन कौन सा है? 79A है। पर्पस क्या है कि जो इनकम सर्च में और सर्वे में अनडिस्क्लोज इनकम डिटेक्ट होगी, उसके अगेंस्ट में कोई भी सेट ऑफ लॉस नहीं दिया जाएगा। आई होप दिस इज नोटेड बाय यू। द पर्पस ऑफ दिस इज कि दैट जैसे 115 BBE में कानून है, 115 BBE में ऑलरेडी कानून है कि जो सेक्शन 68 की इनकम 115 BBE में टैक्स होगी, उसमें लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ये 2016 में अमेंडमेंट आ गई थी सर। अब वही चीज उन्होंने सर्च और सर्वे के अंदर जो अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी जाएगी उसके लिए डाल दिया। आप देखिए इसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई सर्च होती है, सर्वे होती है रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ, और कोई उनके यहाँ ऐसा कागज डायरी मिलती है सर जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने बायर से कुछ ऑन मनी लिया है, ऑन एंड अबव द डिक्लेयर्ड प्राइस, और उसका इनकम, पहले तो पॉइंट ये आता है कि बिजनेस इनकम कैसे टैक्स होगी, बिजनेस इनकम टैक्स होगी, बिजनेस रेट पे टैक्स होगी, बिजनेस हेड में टैक्स होगी। अब उसमें इनकम ही टैक्स होगी, उसका कोई रिसीट टैक्स नहीं होगा पूरा का पूरा, कि जो सर्च में अनडिस्क्लोज, वो जो रिसीट मिल गई अनडिस्क्लोज रिसीट, अभी भी वर्ड नहीं है, अनडिस्क्लोज इनकम ही वर्ड है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि अभी भी कोई सर्च होता है और सर्वे होता है और उसमें कोई अनडिस्क्लोज रिसीट पकड़ी जाती है और वो बिजनेस नेचर की रिसीट है, तो इन माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग दिस अमेंडमेंट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द रिसीट, और दिस अमेंडमेंट डज नॉट से द इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल, अनडिस्क्लोज रिसीट विल बी टैक्सेबल। आई होप दिस पॉइंट इज टेकन ऑफ बाय यू। दूसरा इसमें पॉइंट ये सर, उसका बिजनेस हेड ही रहेगा अगर वो बिजनेस से कमाई हुई है, और वो बिजनेस इनकम ही निकलेगी उसमें। अब जब बिजनेस इनकम बिजनेस हेड से फिल्टर होकर निकल जाएगी, तो 79A क्या करेगा? 79A आपको उस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट जो आपने अनडिस्क्लोज इनकम की फॉर्म में है, तो उससे कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा आपको, कोई लॉसेस का, पुराने लॉसेस का। तो इसका पर्पस यही है कि अनडिस्क्लोज इनकम जो सर्च में मिले और सर्वे में मिले, दोनों टाइप की, सर्वे वाली अनडिस्क्लोज इनकम भी और सर्च वाली भी, दोनों इसमें कवर्ड है सर। और अनडिस्क्लोज इनकम की एक बहुत लंबी चौड़ी इसमें परिभाषा दी हुई है। मैं आपको सबको बता दूं कि ये अनडिस्क्लोज इनकम की परिभाषा हमारे लिए नई नहीं है। 271 AAA सेक्शन ऑलरेडी है। सर्च के केस में जो पेनल्टी लगती है, वो जो वहां पर पेनल्टी वाला सेक्शन है और वहां पर जो अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन है वही यहाँ पर डाली गई है। तो 79A defines undisclosed income means the income which is detected in the search based on some incriminating material.
And if you have to offer tax on that, if the taxation is to be done on that, then no set off of loss, past losses of set off of loss will be given. तो ये दोनों अमेंडमेंट संजय भाई क्लियर है? सर क्लियर है? हेलो सर क्लियर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। ओके सर। सर अब अगला मैं तीसरी अपनी श्रृंखला के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आप लोगों के साथ ले रहा हूं। आप सब मेरे साथ पूरी अटेंशन के साथ रहिएगा। ये अब 2-3 चेंजेस ऐसे जो मैं डिस्कस करूंगा, जैसे अब डिस्कस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और जिनमें मैंने कई बार सेमिनारों में बोला भी है कि इनमें आगे आने वाले टाइम में बहुत डिबेट की आवश्यकता पड़ेगी होती। अभी मैं ले रहा हूं सर सेक्शन 139 में जो चेंज हुआ है, अपडेटेड रिटर्न वाला सर। अपडेटेड रिटर्न, आप सबको पता है नया कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न। अब ये कहाँ है सर? 139 सब सेक्शन 8 है, नया सेक्शन है। सब सेक्शन मतलब सेक्शन तो पुराना है 139, पर ये सब सेक्शन नया है 8 है। मैं 10 मिनट इस पे दूंगा सर। 139 सब सेक्शन 8A। अब ये क्या है सर? इट इज ए प्रोविजन डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न। पहले तो इस प्रोविजन का नेचर समझ लीजिए क्या है और इसकी बैकग्राउंड और फिलॉसफी क्या है, तभी आप इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे सर। इसकी फिलॉसफी ये है कि सर जिन करदाताओं ने अपनी रेगुलर रिटर्न भर दी या नहीं भरी, बिलेटेड रिटर्न भर दी या नहीं भरी, रिवाइज रिटर्न भर दी या नहीं भरी, मतलब वो लोग जिन्होंने रिटर्न भरी या नहीं भरी, आई होप यू आर नोटिंग, रिटर्न भरी या नहीं भरी, किसकी इच्छा है, श्रद्धा। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और श्रद्धा की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जैसे मैं जो वर्ड यूज होता है ना सर ऑप्शन में, श्रद्धा बोलता हूँ उसको। ये ऑप्शन किसकी है? एसएससी की है, ये डिपार्टमेंट की ऑप्शन नहीं है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करवाना मेरे दोस्त, ये किसकी ऑप्शन है? एसएससी की ऑप्शन है। श्रद्धा किसकी चलेगी? एसएससी की चलेगी सर। सो व्हाट आई एम सबमिटिंग इज दैट दिस सेक्शन इज मेंट टू बी यूज्ड एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर। नंबर 1, it is for all those assessees who have already filed the return or not have filed the return। हाँ, इसके अंदर उन्हीं लोगों का स्वागत है जो लोग कुछ देना चाह रहे हैं, देने की इच्छा से आ रहे हैं। अब मान ले पता चले भाई साहब कोई हमारा असेसी ऐसा है जो वापस लेने की इच्छा से आ रहा है, उसके लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा है। पर्सोना नॉन ग्रेटा समझते हैं ना, पर्सन नॉट वेलकम। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहला बात, सॉरी अभी आवाज आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है सर? Yes, yes, sir. You can continue. Thank you, sir. So I was saying, sir, 139 subsection 8A is meant for the is meant to be used at the option of the assessee A. It can be used by all those assessees who have filed the return of income or who have not filed the return. मैं जब बोलता हूँ who have filed और who have not filed में सब रिटर्न आ गई, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और रेगुलर रिटर्न। तीसरा पॉइंट, इसमें आप कुछ रिफंड वगैरह नहीं मांग सकते हैं, इसमें आपको देना ही पड़ेगा। आप समझ गए सर? अच्छा, आप कौन लोग आएंगे इसमें? वो लोग आएंगे जो इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे। आप समझ गए एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जैसे एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है ना कोविड का, सॉरी मैं उससे लिंक कर रहा हूं, आरटीपीसीआर, इसमें भी एक टेस्ट है एलिजिबिलिटी, बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट है भाई साहब, आप लिख लीजिए सब। 139 सब सेक्शन 8A के अंदर 3 प्रोवाइजो है, जिनमें जो 3 प्रोवाइजो आपको बताते हैं कि कब आप अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे। जैसे मैं सरल तरीके से बताता हूं, वो लोग जो लॉस को बढ़ा रहे हैं, रिफंड मांग रहे हैं, वो लोग नहीं आ सकते। जिनका ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो गया, असेसमेंट प्रोसीडिंग आप नोट कर लीजिए, जिनका असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग हो गया वो भी नहीं आ सकते। जिनके ऊपर सर्च सर्वे वगैरह हो गया वो भी नहीं आ सकते। जिनके ऊपर पीएमएलए वगैरह का, बेनामी लॉ का कोई इंफॉर्मेशन आ गया, ब्लैक मनी लॉ का, वो भी नहीं आ सकते। सो इसमें आने के लिए, इसके लिए 139 सब सेक्शन 8A के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है, जो बहुत लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और वो कहां है सर? फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो एंड थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। और वो क्या कहता है? आप पहले तो रिफंड नहीं मांगेंगे, लॉस को नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आपकी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और आपका कोई कोई ऐसा एडवर्स इंफॉर्मेशन विभाग के पोजीशन में ऑलरेडी नहीं आया होना चाहिए। अब इसकी यूटिलिटी बनेगी सर 139 की, जो ये पता चलेगा, जिससे कि हमें तो पता चलता नहीं जनरली एसएससी को कि कौन सी उसके केस में इंफॉर्मेशन आ रही है, डिपार्टमेंट हमें नहीं बताता है। पर 139 आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आप वो पूरा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पूरा कर लेंगे। अब आप कहेंगे गोयल साहब इसमें कौन आदमी जाएगा? सर वही जा पाएगा ना जो इसका टाइम लिमिट नोट कर लीजिए। 139 का फाइल कब तक करेंगे ना सर, उसमें 2 स्लैब है।
एक तो वो जो विद इन एंड ऑफ द 1 ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर जा रहे हैं, आई होप यू आर नोटिंग माय पॉइंट सर, और एक जो उसके बाद जा रहे हैं दूसरे साल में, दो ट्रेंचेस में आप जा सकते हैं, विद इन 1 ईयर एंड विद इन द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड देन इन द सेकेंड ईयर। तो आप इन दो पहले वाले में जाएंगे तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना है, और आप दूसरे वाले में जाएंगे तो 50% देना है एडिशनल टैक्स। आई होप इट इज नोटेड बाय यू सर। संजय भाई क्लियर है? यस यस सर। और इसमें जैसे मैं बोल रहा था सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सेमिनारों में वो रेज हो रहा है कि 139 जैसे अब ये सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम का है और सब सेक्शन 8A में आप रिटर्न भरेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिटर्न की अलग से सिक्योरिटी असेसमेंट होगी? अच्छा, इनकम कैसे डिटरमाइन होगी? देखिए, किसी ने पूछा जब हमने अपडेटेड रिटर्न बनाई तो हम उसमें इनकम तो दिखाएंगे ना, एडिशनल इनकम, तभी तो 139(8) में हमारा स्वागत होगा। क्वेश्चन ये है कि लेट अस एक एसएससी का प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक अकाउंट है एक लाला जी का, और वो लाला जी कहते हैं साहब मेरे से बैंक अकाउंट दिखाना रह गया। कहाँ दिखाना रह गया? आप नोट कर लीजिए, मेरी बात को लाइटर साइंस में लीजिएगा। दिखाना रह गया रिटर्न में बैंक बुक्स में, और वो उनको लगता है कि नहीं साहब मेरे को 148 आने वाला है या कुछ होने वाला है, आप मेरा अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए। आप समझ गए मेरा बात? तो 1/4/22 के बाद आप रिटर्न भर सकते हैं, पुराने वाले के लिए भी भर सकते हैं साल के लिए। आप समझ गए भाई साहब सब मेरा बात कि ये पुराने, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया 1422 से कंसेप्ट लागू होगा, तो आप पुराना वाला जो साल है असेसमेंट ईयर 21-22 उसके लिए भी भर सकते हैं इसको। आई होप इट इज क्लियर टू यू सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इनकम कंप्यूट करेंगे तो इसमें इनकम लेटर से कैसे आएगी, बैंक अकाउंट में कैसे निकालते हैं आप इनकम? हम तो जनरली जब भी कोई इनकम निकालते हैं बैंक के अनडिस्क्लोज बैंक अकाउंट में, तो 2 फार्मूला यूज करते हैं। या तो पीक अमाउंट लेते हैं, पीक थ्योरी लिख लीजिए आप, पीक थ्योरी, या उस बैंक अकाउंट के अंदर जो टर्नओवर है उसका कोई प्रॉफिट परसेंटेज लेते हैं सर। अब क्वेश्चन ये है कि 139 सब सेक्शन 8A में जब आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो कौन सी इनकम से स्टार्ट करेंगे? ये यहां पर नहीं है, वो आपको सेल्फ डिटरमाइन करनी है। हाँ, टैक्स कितना देना है वो 140B में उन्होंने बता दिया कि अपडेटेड रिटर्न में आप जब ही आ पाएंगे जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो अपडेटेड रिटर्न वाला सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आप दे देंगे। वो कहां है? सेक्शन 140B में। और उसमें क्या देना है आपको? 4 चीजें देनी है सर। उस अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो आप एडिशनल इनकम दिखा रहे हैं उसके अंदर जो भी टैक्स पैदा होता है, टैक्स तो देंगे, ब्याज भी देंगे, फीस भी देंगे जो पेंडिंग फीस है, और चौथा एडिशनल टैक्स। 4 चीजें देनी है आपको, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और टैक्स प्लस वो जो एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे आप? अगर आप विद इन 1 ईयर ऑफ एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स देंगे, और अगर आप 1 साल के बाद भर रहे हैं और सेकंड ईयर के एंड से पहले भर रहे हैं तो 50% देंगे। और कैसे निकालेंगे एडिशनल टैक्स? वो एक मर्यादा इन्होंने दी है, वो थोड़ा अजीब सा फार्मूला है, बड़ा लंबा चौड़ा, मेरे को समझ में कम आया फार्मूला। वो एडिशनल टैक्स निकालने का फार्मूला क्या है सर? टैक्स प्लस इंटरेस्ट मिलाकर एडिशनल टैक्स होगा, और उसका आपको 50% देना है या 25% देना है। अब बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिकली हमारे सेमिनार में कंप्यूट करने की कोशिश करी प्रैक्टिकली, तो ये बहुत ज्यादा बन रहा है सर, बहुत ज्यादा, मतलब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये कोई सरल किसी को, मतलब कोई जैसे होता है ना कि आपको आगे से तो कोई चीज बड़ी सस्ती नजर आ रही है कि ये तो बड़ा चीप हो सकता है, ऐसा नहीं है। बी केयरफुल सर, एंड बी अटेंटिव कि दैट दिस डिमांड्स 4 पेमेंट्स, 1 टैक्स, 2nd इंटरेस्ट, 3rd फीस, 4th एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स इज 25% स्लैब एंड 50% स्लैब। नाउ अगर आपने इनकम दिखानी है तो मैंने बता दिया इनकम आपको खुद कंप्यूट करनी है। टैक्स आपको जो कंप्यूट करना है वो प्रणाली उन्होंने बता दी, सेक्शन 140 कैपिटल बी। इसके लिए अलग से उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, आप सब नोट कर लीजिए। ये यहां से आपको एक और चीज में पता चलेगी संजय भाई, 153 है सब सेक्शन 2A, 153 सब सेक्शन 2A, कि जब भी आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे उसके अगेंस्ट में असेसमेंट करने का टाइम लिमिट, एडिशनल टाइम लिमिट अवेलेबल होगा उसका असेसमेंट कंप्लीट करने का। ये भी अमेंडमेंट किया गया है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप रिटर्न भरेंगे। ये तो इसका मतलब ये निकला सर, मेरे को लगता है कि जब भी कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल होगा ना उसका स्क्रूटनी जरूर होगा। इसीलिए वो सेक्शन 153 सब सेक्शन 2A का अमेंडमेंट किया गया है कि उनको एडिशनल टाइम लिमिट दिया गया है उस अपडेटेड रिटर्न के असेसमेंट का, और उसमें वो असेसमेंट में चेक करेंगे सर आपको कि क्या आपने अपनी इनकम जिस पे एडिशनल टैक्स दिया है वो ठीक है या नहीं है। तो पता चले संजय भाई, वो कहावत है ना एक दूसरे, वो हमारा कहते हैं क्या करने गए और क्या हो गया। सही सर, समझ गए मेरे हैं? ये सेक्शन में वही होगा सर। नहीं, जैसे आप तो गए अच्छे के लिए, पता चला आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और पता चला जब आप वहां पहुंचे तो आपको और भी बहुत कुछ जैसे घोस्ट मिल गए। तो बी वेयर। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, प्लीज, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का 2 पॉइंट है। एक तो जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आप रडार में आ गए,
ऑटोमेटिकली कि इस आदमी ने टैक्स नहीं दिया था, ये आगे से अपडेटेड रिटर्न करके आ रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो वो सिक्योरिटी में भी ले सकते हैं, आपसे पूछताछ भी करेंगे आगे। और दूसरा ये है कि वो अपडेटेड रिटर्न उनको कितने सर्कमस्टांसेस में ऐसा होगा संजय जी कि वो बिल्कुल सही नजर आएगी और उसमें कोई फर्दर पेनल्टी नहीं लगेगी और कुछ फर्दर एडिशन नहीं होगा। हेलो, am I clear सर? am I clear सर? Yes, sir. अब इसका प्रैक्टिकल एक पॉइंट सुन लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए जहां नोट कर रहे हैं। जैसे एक तो तरीका ये हो गया साहब, आपने अपडेटेड रिटर्न का रास्ता तैयार किया और उसमें बहुत लंबा टोल लगा हुआ है, टोल समझते हैं ना, टोल नाका, और उसमें ये टोल है मेरे लिए, और उसमें टोल क्या है, वो एडिशनल टैक्स वाला टोल है, ये एक पेनल्टी की तरह ले रहे हैं वो, मतलब ये पेनल्टी तो है एडिशनल टैक्स, और क्या है सर। तो आप इसका एक विपरीत चीज नोट करिए सर, मैं आप सबको लिखवाना चाहता हूं कि जैसे आज मेरे से कोई पूछता है कि गोयल साहब एसएससी ने अपनी इनकम में रिटर्न में दिखाना रह गया तो हम कैसे दे सकते हैं, मेरा मानना यह है कि मेरा हम्बल ओपिनियन ये पर्सनल, कि आप पर्सनल उसका कंप्यूटेशन बनाइए प्लेन पेपर पे, उसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए, ब्याज निकालिए और भारत सरकार को जमा करा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत माता को। अब उसके बाद वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 148 ही तो देंगे संजय भाई, और उस 148 के अंदर आपका कोई भी एडिशन नहीं होगा अगर आपने वो जो इनकम पे टैक्स दिया है वो ठीक दिया है, और पेनल्टी आप पे इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि कोर्ट बोलता है ये वॉलंटरी है। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को 139(8)(a) के रास्ते से ही लेकर आऊं। अगर मैं सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दिस अमेंडमेंट इज जीरो, आई एम टेलिंग another viewpoint, a very strong viewpoint कि what prevents me to file a computation and revised computation, and in that I pay my additional tax liability, and that may attract only exposure of 148 reopening, and even that if I am doing it healthily, कोई एडिशन थोड़ी ना हो पाएगा उसमें। और रही बात पेनल्टी की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप सबको पता है, सुरेश चंद्र मित्तल का पुराना ऑर्डर है कि अगर मैं वॉलंटरी बिफोर डिटेक्शन कोई चीज ऑफर कर रहा हूं तो पेनल्टी नहीं लग पाएगी सर। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग 139(8)(a) की यात्रा करना चाह रहे हैं वो अपने आप को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर चेक कर लें सर कि उनके लिए कौन सा बेटर है। आप समझ गए मेरा बात सर संजय भाई? Yes, sir. Yes. और अभी तो 148 में नया कंसेप्ट आ गया, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 148A कि 148 करने से पहले 148A होगा। आप सर 148A की स्टेज में भी रिवाइज कंप्यूटेशन बनाकर दे सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उस कानून से निकल के आ रहा है, सेक्शन 148 कैपिटल A, जहां लिखा था कि 148 करने से पहले आपको प्री शो कॉज नोटिस आएगा। तो आप सब ये बात 139(8) है जाना मेरी अंडरस्टैंडिंग में तभी जरूरी है जब आपको अदरवाइज लगता है कि ये आपके लिए डियरर है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे हिसाब से संजय भाई। कहीं पर भी सेक्शन में ये नहीं लिखा कि दैट इट कैन बी थर्स्ट ऑन द असेसी बाय द रेवेन्यू, इट इज प्योर ऑप्शन एंड डिस्क्रिशन ऑफ द टैक्स पेयर। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े सर। Yes, sir. 139(8)(a) हो गया सर अपडेटेड रिटर्न। अब इसके बाद एक जो ये सेक्शंस हैं सर जिसमें ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो सेक्शन 148 है। देखिए पिछली बारी पूरा 148 चेंज हो गया था, अब इस बार वो चेंज वाले में चेंज है। आप समझिए, ये भी इस बजट में आपको दो महत्वपूर्ण चीजें नजर आएंगी जो मेरे दर्शक बैठे मैडम जैसे मुझे नजर आ रही है। तो मैडम जैसे इसमें क्या है कि पिछली बार फाइनेंस एक्ट 2021 है, उसमें पूरा 148 चेंज हो गया था। अभी तो हम उसको समझना चालू हुए थे, थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे कोर्स वगैरह, अब इन्होंने उसमें फिर चेंज कर दिया है। अब देखिए कितना परेशानी होती है, एक चेंज तो समझ में नहीं आता जो पहले हुआ है, अभी दूसरा चेंज हो रहा जाता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में हो रहा है बहुत ज्यादा इस बार। चैरिटेबल ट्रस्ट में पिछली बार भी पूरा चेंज हुआ था और इस बार भी चेंज है। एनी हाउस मैं आपको सेक्शन 148 वाले 4 चेंजेस बता देता हूं सर क्विकली, आप नोट कर लीजिए सर। सेक्शन 148 जो पिछली बार चेंज हुआ था सर, उसमें नया कंसेप्ट आया था इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम। इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम, अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसको एस्केपमेंट का लिए योग्य माना गया था? वो सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन 1, न्यू सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन 1 थी। उसमें 2 आइटम थी। पहली लाइन आइटम थी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे एसएससी के अकाउंट में आएगी, रजिस्टर्ड अकाउंट में, और दूसरी थी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी से आएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन। अब इन्होंने 3 और डाल दिए सर, 3 न्यू आइटम्स हैव बीन एडेड इन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148 व्हिच कैन बिकम बेसिस ऑफ न्यू 148 या व्हिच कैन बिकम बेसिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ योर केस इन न्यू लॉ ऑफ 148। वो क्या 3 नई आइटम्स है वो लिख लीजिए सर। अगर किसी के केस में किसी बाहर के विदेश से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसके बेसिस पे भी आपका केस खुल सकता है नए 148 के लॉ में। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 90 एंड 90A फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरा, उसमें नया एडिशन ये हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो विभाग को सेक्शन 133C वाला सेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं आजकल सर, 133C, उसका इंफॉर्मेशन आएगा तो भी आपका केस खुल सकता है।
तीसरा इंफॉर्मेशन कि अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर से या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से निकल के आता है कि एसएससी की किसी पर्टिकुलर ईयर की इनकम एस्केप हो रही है तो भी वो बेस बन सकता है। 3 new bases of reopening the case has been added under explanation 1 to section 148. I am repeating, बाहर के गवर्नमेंट से जो फॉरेन विदेश से इंफॉर्मेशन आ रही है वो सर, दूसरा 133C में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो, और तीसरा किसी कोर्ट के ऑर्डर से और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये 5 हो गए हैं सर, 5 हो गए हैं, मतलब 5 का मतलब 5, जैसे शरीर में बोलता हूँ 5 तत्वों से बना है, ये 5 हो गया। 5 का मतलब 5 items are now basis of 148 can be now। अब इसमें अगला चेंज सेक्शन 148 में चेंज है सर, 148A में। अब उन्होंने एक जगह और ऐसा लिख दिया सर, अब देखिए 148A सेक्शन बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, पिछली बार बजट से आया कि जब नए लॉ में 148 के अंदर रीओपनिंग होगी तो 148 करने से पहले 148A होगा, जैसे मैं बोल रहा था। अब उसमें क्या हुआ संजय भाई, इन्होंने उसका एक्सेप्शन डालने चालू कर दिए हैं। अब इस बार भी इन्होंने क्या किया है सर, 148A में एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया है कि जहां उन्होंने लिखा है कि इस पर्टिकुलर एक और एडिशनल केस में वहां 148 से करना जरूरी नहीं होगा। वो कौन सा है, द असेसिंग ऑफिसर हैज रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 135 से, जहां 135 सेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी तहत, वहां पर एओ को 148A का प्री शो कॉज नोटिस देना जरूरी नहीं है। अब इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि पिछली बार इन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट बनाया, अब उसमें उसकी एक्सेप्शंस डालना चालू कर दिया धीरे धीरे और ज्यादा, कि कहां पर 148A यूज नहीं होगा। और अभी देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स, अभी तक 1/4/21 के बाद आज तक आपने किसी ने देखा हो तो मुझे जरूर बताइए, क्या आपने 148A का कोई नोटिस देखा है नए लॉ में? मेरी आंखें तरस गई सेमिनार में पूछते पूछते, मैं थक गया हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया। वही पुराना चल रहा है सर, वो 1/4 के वो जो जून के पुराने लॉ में नोटिस है ना, उन्हीं को हम चल रहे हैं। हम तो अभी नए लॉ में मुझे लगता है हमने वो किया ही नहीं है, ट्रांजिशन हुआ ही नहीं है, जबकि नया कानून 1/4/21 से आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अभी तक किसी करदाता को मेरी नॉलेज में 148 से नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो नया कानून इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, या हुआ नहीं है, या होना नहीं है, क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क? एनी हाउस, आप सब समझ के मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सेक्शन 148 वाली सीरीज में। 148 का चेंज मैंने बता दिया सर, 3 आइटम्स ऐड हो गई। 148A में एक एक्सेप्शन ऐड हो गया। 148B एक नया सेक्शन ऐड किया है। जो लोग सर्च और सर्वे का केस का काम करते हैं सर, वो समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि अब नए 148 के अंदर जो सर्च होती है और सर्वे होती है, उनका भी असेसमेंट नए 148 में ही होता है, इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2021। अब इन्होंने इसमें एक सेक्शन डाला है 148B, उसमें लिखा है कि सर्च होने के बाद और सर्वे होने के बाद जब भी असेसमेंट होगा नए 148 के कानून में, तो जिस समय असेसमेंट कंप्लीट होगा उस समय रेंज हेड का, ज्वाइंट कमिश्नर साहब का, जो भी एडिशनल कमिश्नर रेंज हेड है, उनका अप्रूवल लिया जाएगा असेसमेंट कंप्लीशन के टाइम पे। दैट इज अंडर सेक्शन 148B। तो 2 टाइम पे अप्रूवल चाहिए होगी सर, सर्च और सर्वे के केस में। जब केस खुल रहा है तब अप्रूवल चाहिए होगी सेक्शन 151 में, और जब केस की असेसमेंट की समाप्ति हो रही है, उद्यापन हो रहा है, मैं बोलता हूँ उद्यापन, आप समझते हैं ना, हमारे यहाँ मारवाड़ियों में वर्ड है उद्यापन, तो उद्यापन होता है क्लोजर। तो जब असेसमेंट क्लोज होगी तब अलग अप्रूवल चाहिए सर। दैट इज सेक्शन 148B, सर्च केसेस एंड सर्वे केसेस बोथ। अब आ जाइए नया एक और पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट, और बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है सर बहुत सीएस को और हमारे प्रोफेशनल्स को और हमारे टैक्स पेयर्स को सर। पिछली बार सर जब चेंज आया था पूरा 148 में, मैं जल्दी बता देता हूं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग द केस विल बी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। और 3 साल के पीछे आप कब जा सकते हैं, कब तक? 10 साल तक जा सकते हैं इन सम सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांस क्या थे सर, कि 50 लाख से ऊपर का एस्केपमेंट, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ द डिपार्टमेंट, और तीसरा उसके लिए असेट होना चाहिए, अनडिस्क्लोज असेट, हिडन असेट, अनअकाउंटेड असेट। अब ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी वो कानून जो सेक्शन 149 में पिछली बार अमेंड हुआ था, वो कहता था आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब इन्वोक कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 50 लाख रुपए से ऊपर का एस्केपमेंट पर ईयर। दूसरा, इंक्रिमिनेटिंग एडवर्स मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ विभाग डिपार्टमेंट, और तीसरा, असेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट। अब आप देखिए सर, ये हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई, ऐसा कहते हैं ना। हमें लगता था कि ये सेक्शन आने के बाद 3 साल से पीछे जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जनरली संजय भाई असेट तो होता ही नहीं था। अभी उन्होंने असेट के 2 एक्सेप्शन डाल दिए, ऑल्टरनेट डाल दिए, मतलब असेट नहीं भी मिला, अगर ये दोनों में से कोई मिल गया तो भी आपका केस 3 साल के पीछे खुल सकता है। आप नोट कर लीजिए 2 ऑल्टरनेट क्या डाले। ऑल्टरनेट नंबर 1, एक्सपेंडिचर वर्ड डाल दिया है कि अगर कोई भी खर्चा किया हुआ है करदाता ने, लाला जी ने,
किस चीज पे? एक्सपेंडिचर ऑन एनी ओकेजन, एक्सपेंडिचर ऑन एनी ट्रांजेक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन एनी इवेंट, तो भी उसका केस खुल जाएगा। हाँ, 50 लाख का क्राइटेरिया रहेगा, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वाला दोनों क्राइटेरिया चलेंगे, बट असेट वाले के लिए उन्होंने दो अल्टरनेट डाले, एक्सपेंडिचर और दूसरा एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए ये बड़ा खतरनाक है, गूगलिए एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर। अब मतलब कहने का मतलब ये हुआ सरल भाषा में संजय भाई कि अगर एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मिल जाएंगी, या एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा, या असेट भी मिल जाएगा, और 50 लाख रुपए से ऊपर का क्वांटम है थ्रेशोल्ड, और दूसरा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, तो भी आपका केस एक्सटेंडेड पीरियड में खुल सकता है 148। अब लोगों ने बोला भैया ये क्या है, अभी तो कानून पिछली बार आया ही नहीं था, इन्होंने उसका विस्तार करना ही चालू कर दिया। ये विस्तारीकरण है 148 का सर, मेरे को सॉरी, विस्तारीकरण समझते हैं ना संजय भाई? तो ये देख लीजिए भाई साहब। और ये मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं, मिस्टर गोयल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए सर, आप लोग सब ज्यादा मेरे से ज्यादा इस मामले में लर्नेड है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है आपको पता है, एंट्रीज। अब ये एंट्री वर्ड बहुत खतरनाक है सर। अब किसी ने अपने यहाँ क्या एंट्री कर रखी है, उसको आप कैसे परसीव कर रहे हैं, यू नो परसेप्शन एंड, और आपका अपना उस पर क्या दृष्टिकोण है वो बहुत निर्भर करता है। अब एंट्रीज का मतलब तो जनरल एंट्री हुआ वैसे देखा जाए तो, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंट्री का मतलब जनरल एंट्री हुआ। अब उस जनरल एंट्री से इनकम पैदा होनी चाहिए ना, मतलब वो अनडिस्क्लोज होनी चाहिए एंट्री मेरे यहाँ, और या मेरी उसमें से कोई एक्स्ट्रा इनकम निकलनी चाहिए संजय भाई, तभी तो वो एंट्री बनेगी। अब ये दोनों वर्ड्स जो इन्होंने डाले, एक्सपेंडिचर वाला वर्ड तो देखिए सेक्शन 69C को कहता है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपने किताब फॉरेन ट्रेवल का खर्चा कर दिया, शादी ब्याह पे, बर्थडे पार्टी पे खर्चा कर दिया, ऐसा उनको एविडेंस मिल गया। अब इसको बात करें एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब किसी के यहाँ पर कोई उनको एंट्री मिल गई जो आपने अपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर रखी, वो वाली एंट्री, मैं इसको ऐसे समझता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अब जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो ज्यादा नंबर ऑफ केसेस में यूज हो पाएगा जैसे पहले वाले में यूज। तो सर ये 148 वाला चेंज भी संजय भाई हो गया। अभी मैं टीडीएस वाले प्रोविजन के ऊपर आता हूं, फिर उसके बाद अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चलूंगा, वरना मैं अपनी मानी को भी नाम दूंगा सर। अभी समय है ना संजय भाई मेरे पास? हाँ सर है आपका। नहीं, अरोड़ा साहब भी बैठे हैं, उनकी फ्लाइट तो लेट नहीं हो जाएगी बेचारों की मेरी वजह से सर? नहीं सर, आप अपना टाइम प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ। I was just coming to this sir, this sections of TDS provision sir. 194 capital IA। अब 194 IA क्या है सर? देखिए 194 IA जब आया था तो उस समय उन्होंने बोला था कि साहब आप किसी आदमी से इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर TDS काटेंगे 194 IA में संजय भाई। अब उसका रेट क्या था, मतलब जिसमें TDS काटेंगे वो कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन थी। इन्होंने अभी इसमें क्या लिख दिया है कि वो एक्चुअल कंसिडरेशन और सर्कल रेट विच एवर इज हायर, मतलब टीडीएस वाले को जो बायर है उसको भी सर्कल रेट ध्यान में रखना है टीडीएस काटते वक्त। अमेंडमेंट लिखने में बड़ा सरल है सर, दिखने में, पर है बहुत इसका दूसरा इंपैक्ट। आप सोचिए संजय जी, इसका मतलब ये हुआ कि कपिल गोयल इज बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम लेट अस से संजय अग्रवाल एंड आई एम बाइंग इट बिलो सर्कल रेट। नाउ माय ड्यूटी टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 IA विल बी ऑन सर्कल रेट एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट। नाउ जब संजय जी उसका और मेरे यहाँ जब असेसमेंट होगा तब क्या होगा संजय जी? जब सेक्शन 56 की और 50C लगाने की बारी आएगी तब क्या होगा, या 43CA लगाने की बारी आएगी तब क्या होगा? सेक्शन 43CA, सेक्शन 56 या 50C, 3 सेक्शन है ना। तो क्या वो टीडीएस कटने से मेरा रिटर्न में तो हमेशा डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो क्या होगा सर उस समय फिर मुझे सिक्योरिटी असेसमेंट में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, डीवीओ को केस के लिए रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा, और जो भी चीजें चलेंगी वो अपनी जगह चलेंगी। बट अभी इन्होंने ये लिख दिया है कि नहीं साहब, टीडीएस वाला जो बायर का स्टेज है, प्रॉपर्टी बाइंग की स्टेज है, बायर भी टीडीएस सर्कल रेट पे काटेगा, एक्चुअल कंसिडरेशन पे नहीं काटेगा अगर सर्कल रेट ज्यादा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये अमेंडमेंट फिर से एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस, जहां आपको फिर से रिकंसिलिएशन करवाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन समझते हैं, मैं हमेशा संजय भाई लाइटर साइड में बोलता हूँ, राम जी को 36 गुण मिले थे और अभी यहाँ क्या होता है 26 AS होता है, उसका गुण मिलाना होता है। गुण मिलाना समझते हैं ना, गुण जैसे कुंडली मिलती है, हमारे शादी होती है तो कुंडली मिलते हैं, तो उसका कुंडली मिलाना होगा। कुंडली मिलेगा नहीं तो आप फंस जाएंगे भाई साहब। और आजकल तो वो बहुत लंबा कंसेप्ट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एनुअल एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कुछ AIS क्या बोलते हैं सर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो देखिए TDS 194 IA में बायर को सर्कल रेट पे काटना है अगर कंसिडरेशन से वो ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है, मेरा ओपिनियन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है संजय भाई कि आपके ऊपर सर्कल रेट बाइंडिंग हो गया है। मे इट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
टीडीएस से कभी भी ये नहीं होता है कि आप पे बाइंडिंग हो गया है वो टीडीएस। आप समझ गए मेरा बात संजय भाई? Buyer and seller both can still opt to be taxed as per actual consideration just because 194 IA में TDS ज्यादा अमाउंट पे कट गया है। इससे कोई, it is not the end of the road to my mind, it is beginning of the road। बट इससे दिक्कत होगी सर, इससे दिक्कत ये होगी कि वो जो कुंडली मिलान करना है, रिकंसिलिएशन करना है, और जो लिटिगेशन में आपको जाना पड़ सकता है सर। और क्योंकि अभी हम सारा असेसमेंट सब फेसलेस चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। इसमें एक और सेक्शन है सर टीडीएस में जो मैं आपको बोलना चाहता था, 194 कैपिटल आर। अब देखिए सर, जो भी लोग बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं जो इंसेंटिव देती हैं, जिनके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर इंसेंटिव बहुत चलते हैं, अब इसमें लिखा है सर 194 आर सेक्शन पढ़ रहा हूं, 194 कैपिटल आर, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू ए रेजिडेंट एनी बेनिफिट और एनी परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट, comma arising from business or the exercise of profession by such resident shall before providing such benefit or perquisite deduct the tax, shall ensure that tax has been deducted at the rate of 10% on aggregate value of this। अब इसमें थ्रेशोल्ड 20,000 रुपए का है सिर्फ सर। अब वो 20,000 रुपए, कुछ 20,000 रुपए का थ्रेशोल्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेशोल्ड नहीं है। अब इसमें टीडीएस का रेट कितना है सर? एट द रेट ऑफ 10%, और थ्रेशोल्ड इसमें क्या है? 20,000 रुपीज सर। अब किसको इंपैक्ट कर रहा है? लेट अस टेक द एग्जांपल कि कपिल गोयल एक लॉयर है सर, और मैं किसी को सर्विसेज देता हूं, संजय भाई सिंपली बताता हूं, और वो मुझे मेरी फीस की बजाय वो दे देता है, काइंड में कुछ दे देता है, चलिए आप गोयल साहब स्विट्जरलैंड चले जाइए, या सोना दे देता है, या गाड़ी दे देता है। संजय भाई समझ रहे हैं? तो वो खर्चा तो मिल जाता है उसको अपनी इनकम में, और इनकम करते वक्त, पर क्या होता है जो कपिल गोयल जी ने उसको लिया है काइंड में, वो अपनी इनकम में नहीं दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको काइंड में बेनिफिट मिलता है बिजनेस के दौरान, वो अपनी इनकम में उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, जबकि वो टैक्सेबल कहां होता है काइंड वाला बेनिफिट? मैंने आपको बताया था सेक्शन 28 रोमन 4 में टैक्सेबल होता है। अब उस काइंड वाले बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी को एंश्योर कराने के लिए टीडीएस का प्रोविजन लाया जा रहा है 194 आर में, ये इंटेंट है। एग्जाम्पल मैंने आपको दोबारा देता हूं, कपिल गोयल एक लॉयर है, मैं किसी को सुप्रीम कोर्ट में किसी क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करता हूं, वो मुझे पैसे मॉनेटरी फॉर्म में देने की बजाय प्रोफेशनल फीस मुझे काइंड में दे देते हैं सर, गाड़ी की फॉर्म में, सोने की फॉर्म में, भारत विदेश की टिकट दे देते हैं। तो वो मेरे हाथ, जब वो मुझे देगा उससे पहले इंश्योर करेगा कि टैक्स कट गया है, ये प्रोविजन है। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर, आप सब लोग नोट कर लें, इसमें क्या लिखा है, इन्होंने एक गेटवे दिया नया जो और टीडीएस में नहीं होता है। इसमें क्या लिखा है संजय भाई 194 आर में, कि वो टीडीएस नहीं काट पा रहा है, सारा कुछ काइंड में दिया जा रहा है, इसलिए तो वो एक काम कर सकता है, पेयर जो जिसको बेनिफिट जा रहा है उससे कह सकता है कि भैया तुम अपना एडवांस टैक्स जमा करा लो इस पे पूरा का पूरा, तो उसको टीडीएस नहीं काटना होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब या तो टीडीएस काट ले 10%, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं काट पा रहा है टीडीएस समाओ क्योंकि काइंड में सारा, तो वो पेई को बेनिफिट जिसको जा रहा है उसको बोल सकता है भैया आप अपना एडवांस टैक्स ला दीजिए और मुझे चालान दिखा दीजिए। अब किसी ने पूछा हमें क्या विश्वास होगा गोयल साहब इसने किस चीज पे एडवांस टैक्स जमा कराया है, तो वो आपको उसका, मेरे को लगता है इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा है कि जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं वो अगर आपको सर्टिफाई कर देता है कि मैंने ये पैसा पे टैक्स दे दिया है, और वो अंडरटेकिंग दे देता है, इंडेमनिटी दे देता है, और बकायदा अपने सीए से सर्टिफाई करा कर दे देता है सर, तो मैं मानता हूं संजय भाई आप इसके अंदर प्रोवाइजो जो है 194 आर के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। क्लियर है संजय भाई? तो ये नया है, इसमें क्या इसकी इंपैक्ट आप देख रहे हैं पूरे सप्लाई की चेन, पूरे सप्लाई की चेन में जहां पर भी जिसको भी बेनिफिट मिलेगा वहां पर टीडीएस ऑब्लिगेशन आ जाएगा। अगर 28 रोमन 4 में टैक्सेबिलिटी है, मतलब आप काइंड में किसी को भी दे रहे हैं तो आपको टीडीएस 194 आर में काटना है। सर ये जो मेरे दोस्त हंस रहे हैं मुझे भी बता दें सर, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा सा, थोड़ा मेरे मैं भी आई विल बिकम ऑन लाइटर साइड। मेरे को भी क्या है कि जोक तो आते नहीं सर, आपको पता है आप लोगों को सबको है। संजय भाई कुछ है मेरे लिए? हैं? आप कंटिन्यू कर रहे सर? ठीक है कंटिन्यू रखता हूँ सर, ठीक है ठीक है। आप कह रहे हैं आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, आपके मतलब की बात नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर। राधे 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 सीताराम। देखिए एक रामचरितमानस की चौपाई है, मैं कई बार बोलता रहता हूँ आजकल सेमिनार्स में, जाई विधि होए नाथ हित मोरा करऊं सुवेगी दास मोह तोरा। हे प्रभु जिससे मेरा उद्धार हो आप वही करिए, ठीक है सर। अगला पॉइंट सर, अब देखिए पिछली बार मैंने एक चीज सोची संजय भाई, वो आज तक मेरे गले नहीं उतरी, आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया होगा। उसमें कोई कंसेप्ट था, सेक्शन 206 ए भी था, वो कहता था कि नहीं जो टीडीएस काटने वाले भाई साहब हैं
मैं ऐसे बोल रहा हूँ सॉरी, लाइटर साइड पे, वो देखेंगे जिसका टीडीएस कटना है उसने अपना रिटर्न टाइम से भरा है नहीं भरा, मतलब जिसको पेमेंट जा रही है, और अगर टाइम से नहीं भरा होगा 2 साल का रिटर्न तो उनका टीडीएस अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा सेक्शन आया था। अभी उन्होंने कोई यूटिलिटी भी सोचने में आया बना दी है शायद, वो आप लोगों को मिल गई यूटिलिटी सर संजय जी, कि जिससे वो पता चलेगा कि जिसके आप टीडीएस काटेंगे वो हायर टीडीएस कटना ही नहीं कटना। मुझे किसी ने बोला था सेमिनार में, कोई सा वो बन गई है। चलिए इन्होंने उसमें चेंज क्या कर दिया आप सोचिए। चेंज पिछली बार इन्होंने जब सेक्शन डाला था तो संजय भाई कहा था कि जब हायर टीडीएस की बात होगी तो हम पिछले 2 सालों का रिटर्न नहीं फाइल होगा तभी हायर टीडीएस पे जाएंगे। किसका 2 सालों का रिटर्न नहीं फाइल होगा? डिडक्टी का, पेई का, रिसिपिएंट का। अब इन्होंने उसको 2 साल की बजाय 1 साल कर दिया है। सोचिए क्यों किया? इसलिए क्या उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा है, बड़ी बड़ी ईमानदारी से मेमोरेंडम में बोला, देखिए कह रहे ऐसा सेक्शन आने के बाद हमारे रिटर्न फाइलिंग का डाटा बढ़ गया इसलिए हम इसके अंदर अब 1 साल का कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से बनाकर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, हायर टीडीएस के लिए 206AB सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 1 साल का रिटर्न का कंप्लायंस चेक करना है, अपितु 2 साल की जगह। आप मेरे बात समझ गए सर? सर अब ये इसका मतलब ये हो रहा है, मैं कई जगह सेमिनार बोल रहा था, एक मेरे बड़े पुराने दोस्त थे वो कहते नहीं गोयल साहब टीडीएस तो होना ही चाहिए। मैंने कहा आपको पता है ये एक तरफ तो ऐसा लगता है संजय भाई की टीडीएस में सब कुछ समा गया है, जैसे सारे तीनों लोग टीडीएस में समा गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी उसके बाद भी कोई ऐसा थोड़ी ना हो रहा है संजय भाई की टीडीएस के बाद रिटर्न नहीं फाइल करने होती हो, असेसमेंट नहीं होता हो और सब कुछ ना होता हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो टीडीएस का विस्तार होता है, हर एक बजट के साथ कोई टीडीएस में नए सेक्शन आ जाते हैं, उसका स्कोप बढ़ता रहता है। तो या तो ये हो कि टीडीएस में ही सब कुछ होना है भाई साहब और उसके बाद कुछ नहीं होना है। ये पॉलिसी चेंज की बात है कि आप देखिए एक तरफ तो टीडीएस का इतना, मैं जितनी बार भी बजट में बोलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक साल इस परिवार के अंदर दो तीन सदस्य ऐड हो जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे को वाउच करिए, 10 साल निकाल लीजिए कितना टीडीएस का वो 194N कैश विड्रॉवल के टीडीएस को मैं आज तक हजम नहीं कर पाया हूं। वो 206C में टैक्स कलेक्शन जो होता है ना, क्या वो कौन सा आप पैसा विड्रॉ करते हैं बैंक से, वो भी मैं नहीं समझ पाया हूं क्योंकि वहां इनकम का एलिमेंट ही नहीं है और कोर्ट्स में लिटिगेशन चल रही है। 206C पे तो नहीं चल रही, 194N पे बहुत ज्यादा चल रही है जो कैश विड्रॉवल वाला था। बट एनी हाउ मेरा सबमिशन ये है सर कि टीडीएस ज्यादा से ज्यादा कटने के दो प्रॉब्लम होता है। एक तो जिस आदमी का टीडीएस ज्यादा कट जाता है वो जब इनकम टैक्स अपनी रिटर्न भरता है और उसमें वो चीज नहीं आती है तो उसको सब रिकंसाइल करना पड़ता है। और आजकल तो सीपीसी आप सब जानते हैं संजय भाई, सीपीसी कितना बड़ा हो गया है, बड़ा मतलब सब कुछ सीपीसी करने लग गया है, ऐसा लगता है सब कुछ सीपीसी कर देगा। तो ये सब टीडीएस के चेंजेस के इल इफेक्ट्स हैं सर। अब लास्ट में सर मैं थोड़ा सा चैरिटेबल वर्चुअल, देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट मैंने कभी करा नहीं है संजय भाई, मुझे आता भी बहुत कम है। लोग पूछते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या है, क्रिप्टो करेंसी में। देखिए जिसने क्रिप्टो करेंसी का काम किया हो ना और जिसको क्रिप्टो करेंसी मार्केट का नॉलेज हो वो तो संजय भाई अच्छे से बता देगा, पर मेरा जैसा आदमी नहीं बता पाएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ लास्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अब उसमें 2 चीजें नोट कर लीजिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक तो चेंज इन्होंने किया है सेक्शन 11, 10, 11, 12A, 12AB और 13। मैं सब आपको एक ही तरीके से बता दूंगा। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 कैपिटल A, सेक्शन 12AB एंड सेक्शन 13। अब इसमें क्या चेंजेस है सर सरल भाषा में? एक तो उन्होंने कमिश्नर साहब के पास जो चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस कैंसिल करने का पावर है उसको वाइड कर दिया है 12AB में। पहले जो सर्कमस्टांसेस थे जिनमें ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था और अब जो सर्कमस्टांसेस है उनमें आपको एक अंतर नजर आएगा, जहां एक नया कंसेप्ट डाला है स्पेसिफाइड वायलेशन का। अगर किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई भी स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया तो उसका ट्रस्ट कमिश्नर साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस के साथ। अब स्पेसिफाइड वायलेशन की परिभाषा दी है सेक्शन 12AB में, बड़ा लंबा चौड़ा स्पेसिफाइड वायलेशन बताया हुआ है। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चेंज आप सब नोट कर सकते हैं सर, सेक्शन 13 में है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 10। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई भी ऐसी बिजनेस इनकम कमा ली जो उसके लिए वर्जित है या उसने खाते मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो उसका इनकम कैसे कंप्यूट होगा? जो आदमी बिजनेस इनकम कमा रहा है वर्जित बिजनेस इनकम, इम्परमिसिबल बिजनेस इनकम, और दूसरा कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट और या वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, तो सर सेक्शन 13 में एक नया सबसेक्शन ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, जिसमें उसका अलग टाइप का इनकम कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म बताया गया है, जिसमें लिखा गया है ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके पास कोई बिजनेस इनकम आ रही है सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 वाली,
और या जो बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसकी इनकम कमर्शियल प्रिंसिपल पे नहीं निकलेगी, फिर नॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इनकम वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई साहब उसको। अब उसका इनकम अलग तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसका खर्चा देखा जाएगा, जो वो खर्चा कर रहा है, खर्चा बेस्ड इनकम डिटरमाइन होगा। दैट इज सेक्शन 13 सब सेक्शन 10। वो जो स्पेसिफाइड वॉल्यूशन कर देगा और जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे मिलेगी। अब एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर एलिजिबल होगा, लिख लीजिए मोटा मोटा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया विच इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया। और दूसरा उसमें वो 3-4 एलिजिबल क्राइटेरिया दिए हैं कि वो एक्सपेंडिचर कॉर्पस में से नहीं होना चाहिए, लोन बोरोविंग में से नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो खर्चे के बेस पे आपकी इनकम निकलेगी। ये नया कंसेप्ट है सर, सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 उन लोगों की जो स्पेसिफाइड वायलेशन कर रहे हैं। और उसमें एक और बात उन्होंने लिख दी साथ में कि 48 सब सेक्शन 3 जो बिजनेस हेड का कैश खर्चे वाला सेक्शन है 48(3) और ये 40(I) टीडीएस वाला, ये दोनों लगेंगे सर। सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 में 48 सब सेक्शन 3 भी लगेगा और 40(I) जो टीडीएस डिसअलाउंस वाला है वो भी लगेगा। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 की फिलॉसफी ये है सर, इट ब्रिंग्स अगेन हाइब्रिड मोड ऑफ सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशन in the charitable trust taxation, and it is a special concept. I believe it is first time brought into the charitable tax concept sir. Another important area is sir कि जहां वो सेक्शन 11 में एक अमेंडमेंट किया है, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाला है पूरे सेक्शन 11 के बाद कि आप कोई भी एप्लीकेशन आपको तभी मिलेगा सर, आप सब नोट कर लीजिए, ये क्रांतिकारी एक्सप्लेनेशन होगा। सेक्शन 11 के अंदर एक नया एक्सप्लेनेशन डाला गया है जिसमें लिखा गया है कि किसी भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम को लेने के लिए आपको उसका पेमेंट करना अनिवार्य है। संजय भाई ये बहुत ट्रिकी चेंज है। इस चेंज का मतलब ये है कि आपको कभी भी अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम एक्रूअल बेस पे नहीं मिलेगा, अब आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम सिर्फ पेमेंट बेस पे मिलेगा। दैट इज न्यू एक्सप्लेनेशन एडेड इन सेक्शन 11। अब इसमें एक सेक्शन 12A में एक जगह लिख दिया कि सीबीडीटी जैसे उन्होंने बिजनेस हेड में रिकमेंड किया हुआ है डिटेल बुक कीपिंग वगैरह के लिए, ऐसा सीबीडीटी या रूल मेकिंग बॉडी सेक्शन 12A में रिकमेंड करेगी कि कौन सी बुक्स रखनी है और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा। और मान लीजिए सेक्शन 12A का इस चेंज का मतलब यह है कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी बुक्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट स्टेटस भी वापस लिया जा सकता है। अब इन्होंने 2 नए सेक्शन और ऐड किए सर चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित, 115BBI और 271AAE। अब 115BBI नोट कर लीजिए पहले क्या है। 115BBI का मतलब है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट कोई स्पेसिफाइड इनकम कमाएगा उसकी स्पेसिफाइड इनकम 30% की दर से टैक्स होगी। अब ये स्पेसिफाइड इनकम वो वाली इनकम होती है सर जो वायलेशन से कमाई वाली इनकम, प्रोपोर्शनेट इनकम, प्रो रेटा इनकम। तो सेक्शन 115BBI इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड इनकम टैक्सेबल एट द फ्लैट रेट ऑफ 30% इन द हैंड ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब स्पेसिफाइड इनकम की परिभाषा क्या है? 5 टाइप की इनकम स्पेसिफाइड इनकम बताई गई है। वो कहां है? वो परिभाषित 115BBI में है। अब स्पेसिफाइड इनकम तो टैक्स चलिए अच्छा है, प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्स होगी, जब आप वायलेशन करेंगे तो वो 30% में आ जाएगी 115BBI में। पर इसमें एक पेनल्टी का नया कंसेप्ट डल गया है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं करेगा और ट्रस्टी वगैरह को अपने रिलेटेड पार्टीज को अनड्यू बेनिफिट दे देगा, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है धारा 271AA के तहत। और ये बहुत खतरनाक पेनल्टी है, मैं बता रहा हूं सर आपको। पहली बार तो इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, अगली बार आप वायलेशन करेंगे तो डबल की पेनल्टी लगेगी। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट के चेंजेस, मुझे एक बात बताते हैं संजय जी, तो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारे इंडिया में, जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनके पास 12AA ऑलरेडी है, उनके लिए ये इतने सारे चेंजेस को अपने साथ इंप्लीमेंट करना और उनका ध्यान रखना आसान काम नहीं है। मैं कई जगह सेमिनार में और भी जगह पहले बोल चुका हूँ, इट इज नॉट ईज ऑफ बिजनेस सर। एटलीस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए इट इज नॉट ईज ऑफ बिजनेस। आप देखिए कितना इसका चेंजेस, इतना वाइड चेंजेस है। मैंने तो आपको बहुत कोशिश करके सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, जबकि मैं 25-30 बार बोल चुका हूं तब। वरना ये चेंजेस इतने ज्यादा डेंजरस चेंजेस हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के कि इनके अंदर इतनी सब्जेक्टिविटी भी है और इतनी लिटिगेशन पावर भी है कि बहुत लिटिगेशन जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने काफी हद तक सर आपको सारा बजट का जो भी मेन चेंजेस थे वो सारे बता दिए हैं। और मेरे दूसरे दोस्त भी वहां बैठे हुए हैं और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई थी, शायद प्रोग्राम भी लेट हो गया। Sanjay bhai, I am thanking all my friends who are sitting in the hall, that if there has been some deficiency on my part, kindly pardon me, and I am thankful for all of you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं मेरे सारे प्रोफेशनल कलीग्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस रहते हुए भी सर हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े। हम सब चाहते थे कि सर फिजिकल यहाँ पे रहे, ऑनलाइन में संजय इतना क्लियर हो गया, फिजिकल में रहते तो और भी ज्यादा मैं क्लियर हो जाता था। तो सर थैंक यू सो मच सर। और काफी अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लिया।
हाँ प्लीज 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 सर, एब्सोल्युटली यस। तो क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे ओपन है। सर मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक। हाँ जी, हमारे मिनी जुल्फेज भाई, जिसमें हमारे सचिन भैया। प्लीज सर प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रदर। आपको सुनने में हमेशा अच्छा लगता है। माय प्लेजर। कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं सर। इसमें जो अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स वाले जो मैटर थे, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके इंटरेस्ट पेमेंट या बाकी चीजें, उससे रिलेटेड एक क्वेरी था कि इंटरेस्ट पेमेंट जब अपन बुक्स में डालते हैं, एक्सपेंडिचर बुक करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, तो क्या उस एक्सटेंड तक अलाउ होगा, फाइनेंस टैक्सेबल रहेगा कि पूरा ही? ये आप दोबारा बोलिए सचिन भाई, क्या पूछ रहे हैं दोबारा, सॉरी। 43B से रिलेटेड जो अमेंडमेंट था, अच्छा 43B से, अच्छा अच्छा हाँ। जो इंटरेस्ट अपन बुक करते हैं एक्सपेंडिचर में, उसमें टीडीएस काट देते हैं 10%। राइट। पेएबल है, पेएबल जो है उसका आपने डिबेंचर्स इशू कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। तो टू द एक्सटेंट टू कन्वर्ट हुआ उतना ही डिसअलाउ। वेरी शार्प क्यूरी सर, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि कपिल भाई जैसे 100 रुपए का ब्याज था, 10 रुपए टीडीएस बना, हमने 90 रुपए का डिबेंचर दिया, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। यस सर। तो हम 90 रुपए डिसअलाउ करेंगे या 100 करेंगे? यस सर। सर मेरे हिसाब से तो 90 ही होना चाहिए भाई साहब। और ये मेरा हिसाब नहीं है, एक्चुअली में क्या है, वो जो अमेंडमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे 10 रुपए तो आपने दे ही दिए ना भारत सरकार को, 10 रुपए में आप डिबेंचर थोड़ा दे रहे हैं। am I with you सचिन भाई? यस सर। I am applying the principle of proportionality। अब पता नहीं सर, ये जो अमेंडमेंट्स होती हैं, देखिए किसी ने पूछा कि गोयल साहब वो इक्विटी शेयर इशू कर देगा। इक्विटी शेयर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कि जब आप खर्चे के बदले में इक्विटी शेयर देते हैं वो खर्चा ही नहीं माना जाएगा। एमिको लिमिटेड का खर्चा, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एमिको लिमिटेड का 242 ITR। अब यहाँ हालांकि यहाँ इक्विटी शेयर इशू नहीं हो रहे, यहाँ डिबेंचर इशू हो रहा है। अब डिबेंचर तो सचिन भाई कभी ना कभी रीपे तो होगा ही वो। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ डिसअलाउ कर दिया, लेट अस से आपने 90 रुपए डिसअलाउ कर दिया, 100 कर दिया पूरे के, लेट अस से 100 कर दिया मैंने, तो क्या जब मैं डिबेंचर की पेमेंट करने लगूंगा तब मुझे अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल सर, वही सेकंड क्वेश्चन मेरा वही था। सर मैं वही, मेरे को आपका मन का बात पता चल रहा है सर। ऐसा इतना दूर बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन का बात नहीं आ रहा आपका। मैं हमारा मन का बात भी पहुंचता है, ऐसा नहीं कि मन का बात सिर्फ ही कुछ ही हमारा भी मन का बात होता है, आपका भी होता है, सबका मन का बात होता है सर। तो मन का बात ये है सर मेरा कि वो जो जब तो देंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कहना चाहते हो कि परमानेंटली उसको आप उसको कहते हैं कि ये परमानेंटली डिसअलाउ हो गया। आई होप यू गेट माय पॉइंट। यस सर। तो वो तब मिलना चाहिए। ये मेरी गुड सेंस कहती है, मेरी जो शार्प सेंस कहती है कि भाई, मेरी जो हम्बल सेंस कहती है कि जब वो डिबेंचर रिडीम होगा तब तो खर्चा मिलना चाहिए। थैंक यू सर। हालांकि क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने इस पे। और एक और बात बता दूं आपको, कन्वर्ट एक और कंसेप्ट होता है इसमें। देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में किसी ने पूछा गोयल साहब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एनी अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट। अब ये एनी अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट किसको कह रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डिबेंचर के आगे एक वर्ड और डाला है, एनी अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट बाय विच पेमेंट इज डेफर्ड टू फ्यूचर डेट। सर आगे एक्सप्लेनेशन हो रहा है क्या उसमें? हाँ तो वो हमारा मैं कह रहा हूँ कि तू डाल मैं पाता। और एक दूसरे से की देखिए इससे लिटिगेशन तो बढ़ रही है और क्लैरिटी। अरे भैया आपको उसका 43 भी पहले ही उसके लिए इतना हार्श है, उसने डिबेंचर दे दिया है। मेरे हिसाब से ये चेंज बहुत अच्छा चेंज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत ठीक था सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर आप कुछ पूछना चाहते थे? नमस्कार कपिल जी, राजेंद्र अरोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जी अरोड़ा साहब, राम राम। राम राम सर। सर आपकी सारी बातें मैं सुन रहा था और आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि इन सब परेशानियों में हम अकेले नहीं हैं, इनकम टैक्स वाले हमारे साथ हैं। आई नो अरोड़ा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जीएसटी में भी उन्होंने हमारे वो कस्टम्स में वो जस्टिस बोबड़े साहब का एक बड़ा अच्छा फैसला था, कैनन वाला, वो मुझे पता लगा ओवररूल कर दिया उन्होंने। सर जस्टिस जेबी पार्दीवाला साहब बोलते हैं कि अगर मुझे चांद पर जाना हो और वापस आना हो तो शायद फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लूंगा, जीएसटी समझना बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकता। राइट। लेकिन जो आपका सर ये 14A वाला समस्या है, ये हमारे यहाँ बहुत जल्दी बहुत बड़ा उग्र रूप लेकर सामने आएगा रूल 42-43 में। और ये जो एक्सप्लेनेशन वाली कहानी है सर, ये भी हमारे यहाँ बिल्कुल सेम है जीएसटी में कि नया कानून ले आए एक्सप्लेनेशन से, कानून को एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन से नया कानून ही ले आए।
यही मैं कहना चाह रहा था अरोड़ा साहब। पुराने जो हैं जितने भी जूरिस्प्रूडेंस हैं उसको नल एंड वॉइड किया है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि सिर्फ जीएसटी में ये सब नहीं किया, इनकम टैक्स में भी ये कहानियां चालू है। और उसका देखिए राजेंद्र अरोड़ा जी, आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि एक तो जो लिटिगेशन जो ऑलरेडी सेटल चीज हो जाती है, आप एक तो हम उस जो कांग्रेस के टाइम पे जब चेंजेस आते थे, हम तब भी ऐसे ही पढ़ते थे बजट को, विच वाज नॉट ए गुड वे कि भैया कौन से जगह कोर्ट के रूलिंग ओवर हुए, एंड दैट आई एम सेइंग हम्बली। और दूसरी बात आप देखिए अरोड़ा जी कि अब भी हम वैसे ही पढ़ना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने वो ट्रेंड चालू कर दिया है कि दोज रूलिंग्स व्हिच आर फेवर टू द टैक्स पेयर, दे आर हैंडपिक्ड एंड देन दे आर रिवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली। And this is not a healthy trend for that is against that मैडम ने FM मैडम ने अपनी स्पीच के अंदर महाभारत के श्लोक पर्व को साइट किया, वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सर धर्म जो है वो फिर वो जैसे आपने अभी महाभारत और रामचरितमानस की बात की, तो धर्म क्या है? भगवान ने भागवत गीता में वेदों का रेफरेंस दिया, और जो वेद नहीं पढ़ सकता वो भागवत पढ़ ले, धर्म और कर्म दोनों पता लग जाएगा क्या होना चाहिए। पर हमें स्लोगन की तो बात नहीं चाहिए ना। आप भी मेरी बात अप्रिशिएट कर रहे होंगे, जीएसटी का भी चेंज वैसे ही हो रहे हैं, इनकम टैक्स के भी वैसे ही हो रहे हैं। भैया आप हमारे को ठीक है, वी लाइक दैट स्लोगन ना, बट वो जब आप चेंज बना रहे हैं तो उसमें भी तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, विद ड्यू ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑल रिस्पेक्ट। सही बात सर, कहीं ना कहीं हमारी जो वर्ल्ड क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है इन दी वर्ल्ड मार्केट, दैट आल्सो गेट्स डिटोरिएटेड विद ऑल दिस, and this leads to litigation ना brother, and you know they say madam has said कि very beautifully कि predictable कानून होना चाहिए, predictable tax regime होना चाहिए। अब ये predictable कहाँ रहा? predictable कहाँ है? पालकी वाला साहब कहते थे कि आप कोई भी कानून ऐसा मत बनाइए जो आप सबको गलत टैक्स इवेडर मान के बना रहे हैं। अब यहाँ तो सारा कानून ही वही बन रहा है। सर एडम स्मिथ के जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है उनमें पांचों कैनन्स को, पांचों एट्रीब्यूट्स को टोटली डिसरिगार्ड किया जाता है सभी कानून को बनाने में। और 438 आईटीआर में राजेंद्र जी, 438 आईटीआर पन्ना नंबर 1 आपको साइटेशन बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हमारे इनकम टैक्स का सेक्शन 14 का ऑर्डर है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय का, 438 आईटीआर वॉल्यूम पेज 1 साउथ इंडियन बैंक का। उसमें लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एडम स्मिथ को साइट करके क्या लिखा जो आप बात बोल रहे हो सर, कि साहब ये हमारे देश में जो भी टैक्स बनाता है, कानून टैक्स कानून बनाता है, चाहे आपका जीएसटी बना रहा हो चाहे इनकम टैक्स बना रहा हो, उन्होंने जज साहब ने लिखी है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये लिखा सर कि साहब कोई भी कानून बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाए कि जिस आदमी ने टैक्स पे करना, आप सब नोट कर लीजिए साइटेशन 438 आईटीआर वॉल्यूम पेज 1, ये अभी का ऑर्डर है 14A सेक्शन के ऊपर, तो उसको शुरू से क्लियर होना चाहिए अरोड़ा जी कि क्या देना है टैक्स, कब देना है और किस मात्रा में देना है। अब आप इसको यहाँ लगाइए, ये हो रहा है क्या? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात है। आप वही तो बोल रहे हैं, वो उन्होंने एडम को ही, उसको जो आप बोल रहे हैं उन्हीं को साइड किया, एडम वाले भाई साहब। हाँ, उनको वो जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट रहे हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बहुत अक्लेम्ड कैनन्स हैं वर्ल्ड वाइड। अब हम कहाँ सर विद ड्यू रिस्पेक्ट की मतलब वो होता है कि बेचारे कोर्ट में हमारे जजेस माय लॉर्ड्स इतनी मेहनत करके एक प्रोविजन के ऊपर अपनी एनर्जी सब वकील भी लगाकर सब लगा लोग ऑल स्टेक होल्डर, उसके बाद कोई प्यूरिफिकेशन आती है ब्रदर। अब उस प्यूरिफिकेशन का आप क्या प्रोसेस चल रहा है? आप देखिए ना, आपने उसको रिवर्स रेट्रोगेट कर दिया ना। आप देखिए हमारे यहाँ 144B में फेसलेस असेसमेंट में एक सेक्शन था, भाई साहब बता रहा हूँ, आप बात छेड़ी आपने, वो कहता था कि फेसलेस असेसमेंट में 144B में सबसेक्शन 9 होता था कि अगर वो असेसमेंट कोई भी फेसलेस असेसमेंट के कंसेप्ट के विरुद्ध होगी तो वो नॉन एस्ट माना जाएगा। इन्होंने उस सबसेक्शन 9 को ही हटा दिया। कैन यू इमेजिन? वो कह रहे हैं नहीं साहब हमारे को ये नॉन एस्ट वाला रास नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे एओ से गलती हो जाए, ये तो नहीं लिखा उन्होंने, पर मुझे लगता है उनको ये लगता है कि हमारे एओ से गलती हो रही थी और वो असेसमेंट नॉन एस्ट हो रहे थे, तो उन्होंने वो 144B सबसेक्शन 9 ही हटा दिया और इंसेप्शन से हटा दिया। इसका क्या सेंस हुआ? आप अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं या कम कर रहे हैं उसको? तो एनी हाउ सर, ये क्या है कि मेरे को ये लगता है अरोड़ा जी, जैसे अब आपको पता है मैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपीयर करता हूँ भाई साहब, तो हमारे जैसे वकीलों के लिए काम ज्यादा इकट्ठा हो पाए, ऐसा कुछ प्रयोजन है सर। थैंक यू सर। और सर हम बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपके रास्ते में अब चलने की तैयारी में है सर। हमारे बहुत वेलकम है सर, ये वेलकम है, ये प्रोफेशन आपको सुनना हमेशा से डिलाइट है सर। आने वाले टाइम में देखना अरोड़ा जी, आप जितने भी चेंजेस ये हो रहे हैं आपके जीएसटी में भी और हमारे इनकम टैक्स में भी, आप देखना, मैं हमेशा बोलते आता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में जो भी सेमिनार होते हैं अपने सीएस में सर, मैं जरूर बोलता हूँ और आपको भी आप भी बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि संविधान को साथ में रख के पढ़ेंगे, इनकी संवैधानिक वैलिडिटी को चैलेंज किया जाएगा, तब पता चलेगा ये कहाँ है। इतना आसान नहीं होता है कि आपको इनको चैलेंज प्रोविजन बन गया तो उसका चैलेंज नहीं हो सकता। यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सब जगह चैलेंज हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं। हाँ, ये नहीं मैं कहूंगा कि स्ट्रक डाउन हो जाएगा प्रोविजन, पर उसका एटलीस्ट उसका बनाने के पीछे की मंशा और उसका जो प्रोविजन ड्राफ्टिंग है। आप देखिए
90% केसेस में अरोड़ा जी आप ये अप्रिशिएट करेंगे मेरी बात कि जब जो प्रोविजन बनता है, जैसे हमारे यहाँ 68 लोन वाला प्रोविजन है, वो बनने का इंटेंशन तो ये था कि जिसने एंट्री लिया गलत काम किया उसके लिए बनाया जा रहा है, पर अब लग तो सब पे जाएगा। उसकी ड्राफ्टिंग जो लैंग्वेज है वो बहुत वाइड है और पर्पस बहुत नैरो है। ये क्यों होता है? I ask a question to myself कि when the language of the law is made, it is made very wider, and when the purpose of law is seen, mischief is seen, objective is seen, it is narrower. Why this gap comes in legislative drafting, and that due to that litigation happens, sir. और कोई क्वेश्चन सर मेरे लिए? और कोई क्वेश्चन सर? और कोई क्वेश्चन? वैसे मेरी वोट ऑफ थैंक्स की स्पीच तो सर ने खुद दे दी, थैंक्स बोल के सर को। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र सर ज्यादा खुश थे कि अब आईटी वाले भी उतने ही परेशान हैं जितने जीएसटी वाले हैं। नहीं, वो वायरस संजय भाई, वो जो वायरस होता है ना हमारे यहाँ सब एक समान फैलता है, आप सोचिए मत उसको। सभी जगह फैल रहा है। नहीं, वो एक जैसे उसमें भेदभाव नहीं होता, उसमें इक्वालिटी का नियम चलता है, इक्वालिटी का नियम। सर, लेकिन मुझे नागपुर के मेरे प्रोफेशनल कलीग्स की ओर से जितना समझ में आया, एक तो ये बजट ऑफ एक्सप्लेनेशन है, हाँ, दूसरा हमारे लिए लोन लेना, लोन देना और लोन दिलवाना, ये तीन भी बहुत मुश्किल है। उसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए। कुंडली मिलान की मुश्किल जो सारा देश अभी फेस कर रहा है, तो सर हमारे सभी प्रोफेशनल कलीग्स जो आपको वर्चुअल सुन पाया है, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे जब भी मौका मिले हमें आपका मेरा मोमेंटो सर नागपुर ब्रांच ने पहले भी मेरे मोमेंटो भेजे थे, इस बार भी मैं वेट करूंगा मोमेंटो। थैंक यू सर। उसका तो आपको जरूर मिलेगा जब तक राउंड हो जाए, लेकिन मोमेंटो से कम नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सबको, प्रणाम सबको, प्रणाम सर, थैंक यू, प्रणाम अरुणा जी, प्रणाम। राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सर के लिए। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। मैं एक संजय भाई बस एक लास्ट में एक चौपाई सीता माता के ऊपर रामचरितमानस की जरूर बोलना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तासे जुग में कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। थैंक यू सर, जय सीताराम। थैंक यू सर, थैंक यू। Now, for the second technical session, I am inviting Swarupa ma'am. Please come on. Thank you everyone.